Thank you. Thank you, sir. Now, before I introduce our speaker, I would like to give a brief introduction about Brahma Kumaris. So, Brahma Kumaris is a worldwide spiritual movement dedicated to personal transformation and world renewal. Founded in India in 1937, Brahma Kumaris has spread to over 140 countries on all the 5 continents. It is an international non-governmental organization affiliated to the United Nations, having journal consultative status with the ECOSOC and consultative status with UNICEF. I feel extremely proud to share that Brahma Kumaris is the largest spiritual organization led by women. Since its inception, organization has made values like purity, peace, love and joy a practical and sustainable experience in the lives of millions of people. The organization is serving the world through its 22 wings, which include Women Wing, Youth Wing, Business Wing, IT Wing, Education Wing, etc. The youth wing of the organization has been organizing personality development camps. Their program Touch the Light is taking place in most of the schools of the country with the aim of inducting strong moral values, divine manners, and a well-rounded personality in the students. The education wing of the organization has been organizing workshop classes for teachers and students and has collaborated with many universities in starting MBA in spirituality related fields. For their work, Brahma Kumaris have been awarded 1 international and 5 national Peace Messenger awards by the United Nations. Now let me take the opportunity to introduce our speaker of the day. Brahma Kumari Sister Preeti has been practicing Raj Yoga meditation from the past 16 years and has been rendering divine services as a dedicated sister from the last 13 years in Brahma Kumari's World Spiritual University. She has done MSc in biotechnology and was a brilliant student throughout her school and college life. Widely famous among school students for conducting personality development courses, she has mentored more than thousands of students and enhanced their abilities of judgment, mental concentration, and self-confidence. She has empowered youngsters and college students towards peace, health, happiness, and harmony. She analyzes and addresses a broad spectrum of pertinent topics that include value education, leadership, emotional and mental wellness, work-life balance, overcoming addictions, meditation, among others. An extremely humble personality, she has been conferred upon many prizes by schools and colleges for her contribution and for conducting motivational lectures. Now, without any further ado, I'd like to request Sister Preeti to share her thoughts on keeping calm in crisis. Also, if any participant would like to ask any questions, they may, type the questions in the chat box and later on we can take the questions. And again, I like to request कि सभी अपने अपने mics को and videos को please keep them on off mode ताकि better connectivity रहे. So even videos and audio दोनों को please keep it on off mode. Thank you so much. Now I like to request Sister to please use both Hindi and English and to please start the talk. Thank you, Vivek. Om Shanti. First of all, I would like to congratulate all the people who have joined the meeting, because आजकल हम घर में हैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को और बातों में भी बिजी रखते हैं, पर आप सबने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर कुछ हेल्दी सुनने के लिए आज अपने आप को अवेलेबल किया है, तो एक तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, तो जैसे क्राइसिस वर्ड जब सामने आता है तो जनरली आपने देखा होगा वी ऑल लिव इन 2 वर्ल्ड्स, the outer world and the inner world. The outer world means the world of our physical health, our family, the society around us, हमारी physical body. तो जो भी हम बाहर देख रहे हैं outer world, उसके क्राइसिस के साथ साथ आज हम शायद इस पर्सपेक्टिव को भूल गए हैं या थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं कि आउटर वर्ल्ड की सारी क्राइसिस कहीं ना कहीं इनर वर्ल्ड की क्राइसिस से बिगिन होती है। And inner world comprises of the world of my thoughts, the world of my feelings, the world of my habits, innate nature, संस्कार जिनको हम कहते हैं। तो अभी शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए सभी अपनी जरा आंखें बंद करेंगे
और अपने इनर वर्ल्ड को देखते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर जहाँ भी बैठे हैं, just please keep your eyes closed for some moments, and while listening to me, just feel there is a very beautiful inner world of my consciousness. But do I visit that inner world? I need to check it. अभी भी हम सब महसूस करें, right now, what are my feelings? How am I feeling right now? Can I sense that feeling? अपनी फीलिंग्स को चेक कीजिए। कुछ मोमेंट्स बस अपने आप को देखिए। आई एम विद माई सेल्फ। ओम शांति। हम सबके अंदर एक बहुत सुंदर गार्डन है, द गार्डन ऑफ माई कॉन्शियसनेस, पर उस गार्डन को हम बहुत कम विजिट करते हैं। और आज ये जो क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं, हम सबके लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, एनवायरमेंटल क्राइसिस को हम देख रहे हैं, या ओवरऑल जो ये वायरस का अटैक हो रहा है, एनीथिंग हैपनिंग इन द आउटर वर्ल्ड इज जस्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इनर वर्ल्ड। तो इस इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने को ही हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो जब हम ये क्राइसिस वर्ड देखें, तो आज हम जब बात कर रहे हैं हाउ टू कीप काम इन क्राइसिस, तो क्राइसिस शब्द अपने आप में एक नेगेटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड है। तो क्राइसिस, इसके स्पेलिंग अगर हम अपने सामने लाएं, आपके पास अगर कुछ लिखने के लिए कोई बच्चे लेकर बैठे हैं तो प्लीज इसको नोट करें ताकि आप बाद में भी इसको रिवाइज कर सके। सो द वर्ड elaborates as CRISIS, crisis. तो जो इन एक एक वर्ड की एब्रिविएशन को यूज करके स्पिरिचुअलिटी इसका मीनिंग हमें बताती है, उसको हमने आज अपनी लाइफ से कट करना है। जैसे क्राइसिस का C कहता है स्टॉप क्रिटिकल थिंकिंग। आज आपने देखा होगा हम हर बात पर क्रिटिकल हो गए हैं, क्रिटिकल ऑन एनवायरनमेंट, क्रिटिकल ऑन द सेल्फ क्रिटिसिज्म तो आज बहुत बढ़ गया है। हमारे पास मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स ग्रुप से बच्चे आते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइजेशन मोड में देखते हैं, और उससे बाहर निकलने के लिए दे वांट टू मेडिटेट एंड दे लर्न स्पिरिचुअलिटी। हर बात पे ये क्यों हो रहा है, शुड बी लाइक दिस, शुड नॉट बी लाइक दिस, चाहे खाना है, चाहे आपका अटायर है, व्हाट यू वेयर, सोसाइटी, वर्ल्ड, नेशन, पॉलिटिक्स, गेम्स, सब चीज़ों को लेकर वी आर क्रिटिकल टुडे। और आपको खुद ही फील होता होगा व्हेन आई क्रिटिसाइज, चाहे वो सेल्फ क्रिटिसिज्म है या हम अदरवाइज भी दुनिया के किसी भी इशू को लेकर हम क्रिटिकल होते हैं। तो इस क्रिटिकल थिंकिंग के कारण वो जो मेरे अपना इनर कॉन्शियसनेस के अंदर जो पीस एंड काम है, हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आज हम अपने आप से इस शेयरिंग के थ्रू अंडरलाइन कर लेंगे, अपने आप को एक हफ्ते कम होमवर्क दे देते हैं कि मुझे कम से कम 1 वीक तक किसी बात पर भी क्रिटिक नहीं पास, कोई कमेंट नहीं पास करना। व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी रूप में निंदा, चाहे वो अपनी है, चाहे वो इन्वायरमेंट की है, चाहे वो गवर्नमेंट की है, किसी भी प्रकार का प्रश्न, क्वेश्चन हम अपने माइंड में फ्रेम नहीं करेंगे। लेट मी मेक माई सेल्फ हैव दिस प्रॉमिस विद माई सेल्फ कि क्रिटिकल थिंकिंग को मैंने 1 वीक तक टच नहीं करना है। और फिर मैं चेक करती जाऊंगी कि 1 वीक तक मेरे मन की स्थिति कैसी है। आप इसको 1 घंटा भी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, क्योंकि हम कई बार बहुत सारी बातों पे व्हाट्सएप का मैसेज भी आ जाता है या हम कोई वीडियो ही देख रहे होते हैं, उसके मेकर्स के लिए भी हम क्रिटिकल थिंकिंग अडॉप्ट कर लेते हैं। ऑन एनीथिंग आई कैन बी क्रिटिकल। सो द मोमेंट आई एम इन दैट क्रिटिकल पोजिशन ऑफ थॉट्स, आई कैन नॉट बी एट काम। तो ये दोनों C inversely proportional to each other. So if you want to be at calm, आप अपने मन की पीस को चाहते हैं, तो आप क्रिटिकल थिंकिंग खत्म करनी पड़ेगी। और फिर क्राइसिस का R कहता है रिएक्ट नहीं करें। क्रिटिकल थिंकिंग में एक और पॉइंट अभी मुझे टच हुआ, परमात्मा हमें बहुत अच्छी बात स्पिरिचुअलिटी में बताते हैं कि बच्चे आप जितना क्वेश्चंस करते हैं, तो एक क्वेश्चंस व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाट,
इन सब क्वेश्चंस की क्यू बहुत लंबी है। एक क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आता है, एंड द मोमेंट आई क्वेश्चन, व्हेन माय माइंड, माय बुद्धि, माय इंटेलेक्ट इज एंगेज्ड इन द क्वेश्चंस, देन माय सॉल्यूशन फाइंडिंग एबिलिटी इट स्टॉप्स। कोई बात आ गई, सच में कोई ऐसी परिस्थिति आई है जिसमें मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए, मुझे अपने मन को पीसफुल करके उसको एक ब्राइटर साइड उसकी देखनी है, बट इफ आई हैव क्रिटिकल थिंकिंग, मेरा एटीट्यूड क्रिटिकल है, तो मैं उसके सॉल्यूशन, उसकी ब्राइटर साइड को नहीं देख पाऊंगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने अंदर के क्रिटिसिज्म को वॉच करें, कैच करें और उसको फिनिश करें। और फिर आर कहते I think थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, जस्ट एक बार हैं, I'll वायरस का talk. तो चेन रिएक्शन है ही है, जो एक्ट कर सकते हैं, वी कैन एक्ट, बट वी शुड नॉट रिएक्टर्स बन गए आज सभी। हम बोलते तो है कि वर्ल्ड इज अ स्टेज, वी ऑल आर एक्टर्स, पर इस वर्ल्ड मूवी में एक्ट करना है डिसाइसिवली, असर्टिवली, अपना पॉइंट रखना है, डिटैच होकर दूसरे के रोल को भी देखना है, पर किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करना है। और आपने देखा होगा, देयर आर सो मेनी सिचुएशंस इन लाइफ, बात एक होती है और घर में अगर 3-4 लोग उस बात को परसीव कर रहे हैं, पर उन 3-4 का रिस्पॉन्स और रिएक्शन बिल्कुल वेरी करता है, एंड समटाइम्स इट इज पोल्स अपार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में, अगर सपोज कीजिए आपके बाहर आपने एक साइकिल पार्क किया था पार्किंग में और वो साइकिल चोरी हो गया, एक व्यक्ति घर में कह रहा है थैंक गॉड साइकिल, शुक्र है गया, मैं तो कब से बाइक लेना चाहता था, अब गया तो मुझे नई बाइक मिलेगी। और एक उसी पर रिएक्ट कर रहा ऑन द सेम सिचुएशन कि हे भगवान, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, मेरा साइकिल चोरी हो गया। तो एक को उसी बात पर इतना फर्क पड़ रहा है और एक उस पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा, और ही इज थैंकिंग गॉड कि शुक्र है गया, मैं तो कब से चाहता था जाए। तो आप सोच के देखिए, व्हेन वी कॉल द वर्ल्ड सिचुएशन, इसकी हिंदी बहुत ब्यूटीफुल है, सिचुएशन माना परिस्थिति। तो जब हम वर्ड परिस्थिति यूज कर रहे हैं, परिस्थिति, सी द वर्ड एंड डिवाइडेड इनटू टू वर्ड्स, टू हाफ्स, पर एंड स्थिति। तो पर मतलब पराया, दूसरे का, राइट। तो परिस्थिति माना जो मुझसे अलग होकर जो मेरे सामने बात आई है, वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। सिचुएशन परिस्थिति है, पराई चीज है, आई कैन नॉट कंट्रोल इट वेदर इट इज गुड और बैड, पर मैंने उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो स्व स्थिति तो मेरे कंट्रोल में है ना। परमात्मा हमें बहुत अच्छी बात बताते हैं कि बच्चे, स्व इज मच 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 पावरफुल, हायर एंड एलिवेटेड देन पर आज हम परिस्थिति को अपनी स्व स्थिति पर हावी कर देते हैं। सिचुएशंस, दे ओवरपावर माय सेल्फ कंडीशन या माय सेल्फ स्टेज, द इनर वर्ल्ड। तो जितना मैं स्पिरिचुअलिटी में टाइम स्पेंड करता हूँ, अपने साथ बैठते हैं, हम मेडिटेट करते हैं, द इनर वर्ल्ड ऑफ माय थॉट्स, माय फीलिंग्स एंड माय सेल्फ स्टेज, आई स्टार्ट लविंग इट। यू नो, आई टेक केयर ऑफ माय इनर फीलिंग्स। मुझे याद रहता है कि साइकिल आएगा और चला गया, कोई बात नहीं, और जो मेरी खुशी है वो कई करोड़ साइकिल्स की कीमत से ज्यादा कीमती है। जस्ट इमेजिन यू पुट द होल मनी ऑफ द होल वर्ल्ड ऑन वन बैलेंस, और दूसरी तरफ आप खुशी, प्यार, शांति डालिए, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा। आज सारी दुनिया की दौलत भी कोई लेकर जाए मार्केट में, तो उसको 2 रुपए किलो शांति या 2 रुपए किलो सुख तो नहीं मिलने वाला है ना। आज कितने लोग जो बहुत ज्यादा रिच फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, वो ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो हमारे सामने बहुत बड़ा प्रूफ है कि मनी कांट बाय। नेवर बी अ रिएक्शन। हमेशा हम याद रखें, कम से कम 1 हफ्ता अपने आप को प्रॉमिस करें, कोई भी बात यहाँ से आएगी मेरे तरफ, राइट, जो भी सामने से ये परिस्थिति आई, सिचुएशन, अब उस बात को मैंने अपने मन में पकड़ कर उसके ऊपर क्या थॉट्स क्रिएट करने हैं। मुझे बोलते रहते हैं मैं तो हाँ ऐसा ही हूँ, नो, हर बात को मैंने पॉजिटिवली पकड़ कर उसके ऊपर एक पॉजिटिव नोट क्रिएट करना है। जो स्पिरिचुअलिटी हमें, जो आप रेगुलर अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, तो आपको समझ आ जाती है कि हर बात पे क्या थॉट हमने पॉजिटिव क्रिएट करना होता है।
और फिर हम रिएक्ट नहीं करते हैं, पर हाँ डेफिनेटली हम रिस्पॉन्ड पॉजिटिव जरूर करते हैं। अपने मन की खुशी की वैल्यू को बाहर की दुनिया की सभी बातों से हायर रखें। मेरी मन की स्थिति मेरे कंट्रोल में है, चॉइस मेरे पास है कि मुझे रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। और फिर क्राइसिस का आई हमें कह रहा है, जैसे आज हम व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाटएवर, बहुत सारे सोशल नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, टू मच। कि सुबह उठने के बाद कम से कम हाफ एन हम सुबह उठने से पहले हाफ एन आवर, सोने के बाद हाफ एन आवर हम गैजेट्स यूज नहीं करेंगे। तो इसको राइट लीजिएगा, सोने से पहले और उठने के बाद हाफ एन आवर तक हमने जरा अपने आप को इस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से, कि जो भी न्यूज आई हमने पढ़ ली, जो वीडियो आई हमने देख ली और उसकी क्वालिटी को हमने चेक नहीं किया, क्योंकि जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है। एक तरफ हम पीस चाहते हैं और हम सारा वॉर अपने अंदर डालते हैं आज इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो ये इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन तो कैसे पॉसिबल है कि मैं अपने मन के काम को मेंटेन कर सकूं। तो क्रिटिकल नहीं आना चाहिए। पर ये जो स्पिरिचुअल सैनिटाइजर है माइंड का, हम उसको तो यूज ही नहीं कर रहे हैं। क्या अंदर लेना है क्या नहीं लेना है, आई नीड टू स्क्रीन इट मोर देन व्हाट आई कंज्यूम फिजिकली। आप सोच के देखिए, फिजिकली अगर मैंने कुछ ऐसा अनहेल्दी खा भी लिया, आइटम्स अपने साथ कैरी कर रहा था, तो वो काफी लंबे वॉक पर था। ही वाज लाइक एक एक्सपीडिशन पे था। एक्सपीडिशन पे जाते 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 वो पानी भी कंज्यूम हो गया, फूड भी कंज्यूम हो गया, तो सब ही वाज एम्प्टी नाउ। सो फाइनली ही रीच द कोर हार्ट ऑफ द जंगल, जहाँ सब ब्लैकआउट था, कुछ उसको दिख नहीं रहा, टॉर्च उसके पास थी। फाइनली वो काफी थक भी गया, उसको भूख भी लगी थी, वो प्यासा भी था। तो बहुत एक अजीब सा बहुत बड़ा सा पेड़ उसको सामने दिखा, जैसे वो वॉक कर रहा था, जंगल को क्रॉस कर रहा था। तो बहुत डिफरेंट सा पेड़ था। तो उस पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ी देर उसने रिलैक्स किया, और रिलैक्स मोड में बैठने के बाद उसने ऐसे एक थॉट क्रिएट किया। उसने अंदर अंदर सोचा कि परमात्मा को याद करता हुआ बोला कि हे भगवान, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है, और यहाँ तो ना रेस्टोरेंट है पास में, ना कोई ढाबा है, क्या करूँ, काश थोड़ा सा कुछ खाना मुझे मिल जाता। एंड द मोमेंट ही क्रिएटेड दैट थॉट, बहुत सुंदर टेबल डाइनिंग उसके सामने आ गया, वेराइटी ऑफ फूड्स उसके सामने आ गया। और वो इतना हंग्री था, उसको थॉट भी नहीं आया कि खाना आया कहाँ से, उसने तो सिर्फ सोचा था। एंड ही स्टार्टेड ईटिंग। खाना खाते 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 अब उसको प्यास भी लगी, तो उसने फिर कुछ ड्रिंक्स की डिमांड की, वो भी उसके सामने आ गई, उसने वो भी कंज्यूम कर ली। ये सब कुछ होता जा रहा था, और वो थोड़ा इग्नोर कर दिया उसने कि जंगल में मुझे कैसे अवेलेबल हो रहा है। सोचो, अपने खाना भी खा लिया, अच्छे से पानी भी पी लिया, तो आपको नींद आएगी, थका तो वैसे हुआ था। फाइनली उसने सोचा कि भगवान प्लीज यहाँ कोई अच्छा सा बेड लग जाता और मैं आराम से सो जाता। तो सच में बेड आ गया और वो उसके अंदर घुस गया।
अब जैसे उसने थोड़ा उसको ग्रॉगी फील हो रहा था, जैसे वो नींद में जाने लगा, उसको अचानक उसने अपनी कॉन्शियसनेस में आया और उसने सोचा, अरे मैं इन जंगल, तो हाउ कम दिस फूड एंड वाटर एंड दिस बेडिंग इज अवेलेबल टू मी, जंगल में तो ये मुझे कौन प्रोवाइड कर रहा है। उसने पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ तो बहुत डिफरेंट सा, बहुत अजीब सा, ह्यूज सा था। तो उसने अंदर थॉट क्रिएट किया, अरे इस पेड़ पर भूत तो नहीं है। अब कौन आ गए होंगे। अब जैसे उसने थॉट किया भूत तो नहीं है, बहुत सारे घोस्ट उसके सामने आ गए, हाँ हाँ ही करते उसके आसपास मंडराने लगे। और फिर उसने एक और थॉट क्रिएट कर लिया, अरे ये तो सच में भूत है, ये मुझे खा तो नहीं जाएंगे। तब क्या हुआ होगा, हम शांति हो गया। सी सो व्हाट हैपेंड, जो जो वो सोच रहा था वो एक अंदर एक स्टोरी क्रिएट कर रहा था, और जो वो सोच रहा था वो होता जा रहा था। तो आज हम भी वायरस को लेकर, नहीं नहीं अभी तो 2022 तक तो चलेगा, हमें लगता है नहीं नहीं वायरस इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा, अभी तो पक्का थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होनी ही है। इट्स लॉट्स ऑफ डिटेल्स आर डैमेजिंग टुडे। तो डिटेल्स में ना जाकर क्रक्स पकड़े उस बात का, और सिर्फ उसमें से अपने लाइफ के लिए क्या पॉजिटिव है, मुझे इसमें से अपने लिए क्या पॉजिटिव लेना है। कितने लोग देखिए लॉकडाउन के कारण घरों में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन्होंने कभी गार्डनिंग नहीं की थी, उन्होंने कभी अपने पेट्स को टाइम नहीं दिया था, उन्होंने कभी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था। दे परस्यूइंग सो मेनी हॉबीज। तो हम इतनी नेगेटिव सिचुएशन में से भी तो अपने लिए कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हैं ना। बातें तो दोनों हैं, दुखी होने के ऑप्शंस और सुखी होने के ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, बट आई नीड टू चेक कि मेरा बटन, मैं कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ टू स्टे हैप्पी ऑलवेज। हर नेगेटिव से भी पॉजिटिव निकाल लेना, या पॉजिटिव आसपास पड़ा तो उसमें से भी कोई ना कोई नेगेटिव बात ही उठाना। इट्स अगेन माय चॉइस। सो क्रिटिकल थिंकिंग, नो, अ बिग नो टू दैट। नो रिएक्शंस, एक हफ्ते के लिए कम से कम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक हफ्ता करेंगे तो शायद वो हमारा धीरे धीरे एक हैबिट बन जाएगी कि हमें सिर्फ एक्ट करना है, रिएक्शंस नहीं देने, रिस्पॉन्ड करना है, वो भी बहुत असर्टिवली। और उसकी जरूरत है और कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो इग्नोरेंस को खत्म करें, अपने इनर वर्ल्ड को रोज एक्सप्लोर करें, अपने इनर वर्ल्ड से प्यार, एंड बीइंग विद योरसेल्फ इंक्रीजेस योर सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड स्पिरिचुअली पर्सनली मैंने खुद ये फील किया, द मोर यू आर इन सेल्फ रिस्पेक्ट द मोर यू आर स्टेबल। बहुत सारा केओस या टर्मोइल अराउंड यू, इट्स नॉट एबल टू इफेक्ट यू बिकॉज यू आर विद योर ओन पीस ऑफ माइंड। आप अपने इनर वर्ल्ड से प्यार करते हैं। अपने इनर वर्ल्ड से प्यार करना माना आई लव माई पीस ऑफ माइंड। किसी भी कॉस्ट पे मैं अपनी शांति को संभाल कर रखूंगी, बात आएगी चली जाएगी, पर मुझे अपनी शांति को वैल्यू देनी है। इट्स मोर वर्थी देन द आउटर सिचुएशन। बाहर की बातों की वैल्यू ज्यादा नहीं है, पर मेरे मन की सुख शांति जो परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट है, जो दुनिया में कोई दौलत नहीं खरीद सकती, वो सुख शांति गॉडली गिफ्ट, मेरा गॉडली इनहेरिटेंस है। तो आप इमेजिन कीजिए, कई बार किसी की 2 पैसे की कमेंट, तुम ऐसे नहीं बैठो, तुम ऐसे नहीं करो, वो भी हमें डिप्रेस कर देता है। हम कई बार आजकल स्टूडेंट से सुन रहे हैं बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, घर में क्या करें, हमारा फ्यूचर खत्म हो गया, हम दीदी फ्री हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। कई लोग तो तरसते हैं फ्री होने के लिए। हमें परमात्मा ने फ्रीडम दी है, सच में हमें फिजिकल भी और स्पिरिचुअल फ्रीडम मिली है, तो हम अपने साथ बैठकर टाइम स्पेंड करें। हर नेगेटिव सिचुएशन में, जैसे अभी वर्तमान समय चल रही है, चेक करें क्या हमारे पास अभी तक अपने पास स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं था, और हमें अभी नेचर ने टाइम दिया है तो हम क्यों उसको भी क्रिप कर रहे हैं। टाइम नहीं था तो भी प्रॉब्लम थी, अभी टाइम मिला है तो भी प्रॉब्लम है। तो वर्ल्ड ऑफ प्रॉब्लम्स अपने अंदर है, वो बाहर नहीं है। तो इसे हमेशा याद रखें, आई एम अ कॉन्शियंट बीइंग ऑफ लाइट, आई एम द चाइल्ड ऑफ दैट सुप्रीम बीइंग, परमात्मा का बच्चा हूँ, एंड गॉड हैज गिफ्टेड मी विद सो मच अबंडेंट ट्रेजर, treasure of values, treasure of peace and calm. How to keep calm, ये तो हमें सुनने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। Keeping calm तो मेरा नेचर है। हम सब स्टूडेंट्स, इस समय हम सब स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, टीचर्स भी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी स्टूडेंट लाइफ को भी याद करते हुए कि हमें ये प्राइड होना चाहिए कि हम जिस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि आने वाली जनरेशन को हमने अपना एग्जाम्पल देना है कि देखो हम इतने बड़े क्राइसिस से गुजरे, पर हमने फिर से अपनी कंट्री को खड़ा किया, हमने फिर से अपने अंदर के वर्च्यूज को पकड़ कर रखा, और इस नेगेटिव इमोशंस जो चल रहे हैं, जो टोटल नेगेटिव सिचुएशन है, उसको कम्बैट किया।
और उसके लिए पहले हमें अपने इनर वर्ल्ड से प्यार करना पड़ेगा। रोज अपने अंदर के गार्डन को विजिट करना पड़ेगा, उसको वाटर देना पड़ेगा। उसको वाटर देने का मतलब है स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, बी विद योरसेल्फ। रोज अपने आप को, जैसे अभी हमने 1 मिनट साइलेंस करके पहले चेक किया कि अपनी फीलिंग्स को तो हम रोज चेक करें। राइट नाउ भी अभी हम सुनते हुए सोचिए क्या सोच रहे हैं। अभी भी तो कोई और नेगेटिव स्टोरी नहीं चल रही अंदर। ये जो हम पॉइंट सुन रहे हैं, हमें लगे कि हाँ नहीं, हमने 1 वीक तक जो हमें सिस्टर बता रहे हैं उसके ऊपर हमने काम करना है। इसलिए इग्नोरेंस के ऊपर काम करें, अपने इग्नोरेंस को खत्म करें, स्पिरिचुअल सीकर बने। और लास्ट एस क्राइसिस का हमें कहता है सीकिंग स्टेज को खत्म करें। सी अंदर की सीकिंग बहुत अच्छी है कि अपने अंदर के इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, पर आज जो काम हमारे जीवन में नहीं दिख रहा, क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये लास्ट एस है कि टुडे ऑल ऑफ अस हैव कम ऑन द कंजम्पशन मोड। हम सब चाहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने मेरे लिए क्या किया, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं, सोसाइटी हमारे लिए क्या कर रही है, कंपनीज हमारे लिए क्या कर रही हैं। सो वी एवरी वन ऑफ अस टुडे, लेट अस प्लीज बी वेरी सीरियस ऑन दिस नोट, लेट मी चेक माई सेल्फ कि हर समय मुझे सिर्फ ये थॉट आता है कि मेरे लिए क्या किया जा रहा है, या कभी मैं साइलेंट होकर पॉज करके ये भी एक थॉट करती हूँ क्रिएट कि मुझे दूसरों के लिए क्या करना है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा मंत्र है द मोमेंट यू गिव योरसेल्फ अ थॉट ऑफ गिविंग समथिंग, मुझे दूसरों को देना है, एंड द मोमेंट यू क्रिएट दिस थॉट ऑफ गिविंग यू ऑटोमेटिकली रिसीव। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, गिविंग करते समय ही टेकिंग हो जाता है। जैसे अभी सपोज कीजिए कोई किसी से प्यार से बात करे, प्यार से बात करते समय सबसे पहले वो प्यार का थॉट जो मैंने अपने टोन में, अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में भरना है, वो सबसे पहले क्रिएट कहाँ हुआ, अपने मन में। तो दूसरों से प्यार करने से पहले सबसे पहले तो मैंने अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, अपनी लैंग्वेज को प्यार का एक सीडन दिया। तो जो चीज हम देना शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे अंदर क्रिएट होती है और हमें मिल जाती है, राइट? तो इसलिए हमेशा याद रखें, सीकिंग को खत्म करना है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्राइसिस का है वो सिर्फ ये हो गया कि व्हाट द वर्ल्ड इज गिविंग टू मी, पर हम ये भूल गए वी वर द चिल्ड्रन ऑफ द डोनर, गॉड, परमात्मा, ही इज नोन एज द ओशियन। आप सब प्रेज गाते होंगे भगवान की, जब भक्ति करते हैं मंदिरों में जाके भी जब उसकी प्रेज गाते हैं तो उसकी प्रेज में हम यही गाते हैं, तुम प्यार के सागर, तुम सुख के सागर। तो जब ओशियन के बच्चे, कौन मांगने वाले, प्लीज डोंट माइंड दिस वर्ड, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, but ये बहुत बड़ा एक रियलिटी है। टुडे ऑल ऑफ अस हैव बिकम रॉयल बेगर्स। जो सड़क पर भिखारी होते हैं, प्लीज डोंट माइंड, यूज इट इन टेक इट इन अ लाइटर वेन। सड़क पर जो भिखारी होते हैं वो कैसे मांगते हैं, ऑफिशियली कटोरा पकड़ के, है ना, 10 रुपए दे दो, 15 रुपए दे दो, आजकल तो उनके भी टारगेट्स फिक्स होते हैं। लेकिन हम कैसे मांगते हैं, प्यार से बात तो करो, थोड़ी शांति तो दे दो, मुझे काम चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। तो हमने सिर्फ वो कटोरा नहीं पकड़ा, पर बहुत अच्छे कपड़े पहनकर हम घरों में बैठकर अपने अपन सिस्टम से मांग रहे होते हैं। आज हमारा सिस्टम अगर नहीं चलता जैसे हम चाहते हैं, वही कहीं हैंग हो जाता है, तो हमारी शक्ल कैसी बन जाती है। तो आप इमेजिन करो, हमारे मन की खुशी, हमारा पीस ऑफ माइंड एक सिस्टम के हैंग करने या ना करने पर भी डिपेंड कर रहा है। आज गैजेट्स भी हमें चला रहे हैं, हमारे कंफर्ट, कंफर्टेबल लग्जरीज एसेट्स हमें चला रहे हैं। तो हर चीज से हम मांग ही तो रहे हैं कि सब कुछ बेटर 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 आउटसाइड, देन माई इनर वर्ल्ड इज हैप्पी। नो, spirituality teaches us you are a happy soul, you are a peaceful soul। जैसे पानी का नेचर है कूल एंड काम, पानी को गैस पर रखते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर पर रखते हैं, देन इट इज अ बॉइलिंग, वो बॉइलिंग वाटर बनता है, तब वो 100 डिग्री सी पर है तो बॉइल हो रहा है। पर जैसे हम नीचे से उसका सोर्स बंद करें जो उसको हीट अप कर रहा था, थोड़े टाइम के बाद वो फिर से कैसा हो जाता है, और फिर से काम हो जाता है, क्योंकि उसका ओरिजिनल नेचर कूल है। इसी तरह हम सब जो बीइंग्स इस ह्यूमस को चला रही हैं, आई गेस आप सब स्टूडेंट इसको मानते होंगे, फिजिकल बॉडी को ड्राइव करने वाली फोर्स जिसको हम स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, एनर्जी, सोल कहते हैं, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमस को ड्राइव करने वाला मैं बीइंग हूँ। और उस बीइंग को, जैसे बॉडी हमारी 5 एलिमेंट्स की बनी है, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई, तो ये बीइंग, आत्मा, ये कॉन्शियसनेस भी तो किसी एनर्जी की बनी होगी ना। तो परमात्मा ने आत्मा को जब मैन्युफैक्चर किया, तो आत्मा, बीइंग द चाइल्ड ऑफ गॉड, इज मेड अप ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। इट इज माई इनेट नेचर। जैसे पानी का नेचर ठंडा है, तो आत्मा का नेचर शांति है, सुख है।
हमें सुख देने वाला दुनिया में कोई बना ही नहीं है, हम सुख के सागर के बच्चे हैं। आई एम द चाइल्ड ऑफ ओशन ऑफ हैप्पीनेस, सो इट्स माई कॉम्पोजिशन टू बी हैप्पी। तो एक हफ्ते के लिए प्लीज इस सिचुएशन को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। जो आज हम सीकिंग मोड पर आ गए हैं कि यू डू दिस फॉर मी, everything happens outside, better better better, then I'm a happy soul. No, I'm not living for happiness. आप किसी को दिल्ली बुला रहे हो और उसको बोलो प्लीज तू दिल्ली पहुंचना, पर जैसे मर्जी पहुंच जाना, चाहे पैरालाइज्ड होके पहुंचना, फ्रैक्चर करवा के पहुंचना, एक्सीडेंट करवा के पहुंचना, पर बस पहुंच जाना। कभी ऐसे विश करते हैं किसी को हैव अ हैप्पी डेस्टिनेशन? नो। आप हमेशा दूसरों को कैसे विश करते हैं? हैव अ हैप्पी जर्नी। तो लाइफ इज अ जर्नी। हैप्पीनेस मंजिल नहीं है। हैप्पीनेस तो एक एक इंग्रेडिएंट, मेरे हैप्पीनेस मैंने हर अपने लाइफ के हर स्टेप पर अपनी थॉट में डालना है। इट्स द इनपुट। तो हैप्पी सोल कुछ भी कर रही है हैप्पीनेस से कर रही है। तो एक हफ्ते तक इस मंत्रा को लेते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट काम इन क्राइसिस। सो आई एम पीस। पीसफुल होकर मुझे जीना है, पीस के लिए नहीं। सो चेंज दिस इक्वेशन। हम शांति के लिए नहीं जी रहे हैं, हम इस प्लेनेट पे शांति के लिए नहीं आए थे। ऑलरेडी परमात्मा ने तो हमारे अंदर शांति कूट कूट के भरी है। इट इज माई ट्रेजर। आई जस्ट नीड टू सिट बैक विद माई सेल्फ, be in that silent corner of myself which is very very peaceful, and then take out that peace, explore that peace, be with my peace. So I am peace. तो क्राइसिस का ये CRISIS हमें बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है। तो क्राइसिस एक्चुअली में क्राइसिस नहीं है, क्राई वर्ड तो अच्छा नहीं है ना। तो आज हमारे माइंड के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं वो बाहर का क्राइसिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसको अंडरलाइन कीजिए। बाहर प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ है। तो अपने मन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए काम रहना है। तो काम का CALM, ये भी हमें एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है। C हमें क्या कहता है? चूज राइट डाइट, स्पिरिचुअल डाइट। इससे पहले भी हमने थोड़ा सा इसको मेंशन किया। अपने थॉट्स पर प्लीज सभी अटेंशन दीजिए। अभी जो आपको मंत्र दिया लास्ट में, जो आपको सीकिंग स्टेज के लिए बताया, आई गेस आई रिपीट क्राइसिस वाला वर्ड अगेन। क्रिटिकल थिंकिंग, बिग नो टू दैट। नो रिएक्टिविटी, ओनली एक्ट, डोंट रिएक्ट। इंफॉर्मेशन ब्लास्ट, स्टॉप करें उसको। टू मच इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। आज हम नॉलेजफुल कम है पर इन्फॉर्म्ड बहुत है। Once I read something somewhere very beautiful. Information turns to knowledge and then it turns to wisdom. पर आज आप चेक करो, अगर हम सारी क्राइसिस वाली नेगेटिव इंफॉर्मेशन अपने अंदर फीड करेंगे तो किस तरह की विजडम हमारी बनेगी? तो सच में हम वाइज बनेंगे? पहले जमाने में लोग इन्फॉर्म्ड कम होते थे, उनका IQ बहुत अच्छा नहीं होता था, बट वाइज होते थे। आज भी हम बड़े बुजुर्गों की सलाहों को याद करते हैं। उन्होंने ऐसे कहा था, मेरे दादी ऐसे कहते थे, और उनके मंत्राज आज भी काम करते हैं। पहले जमाना को याद कीजिए। इट वॉज मच 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 काम एंड पीसफुल टाइम देन आवर्स। वाई? बिकॉज इंफॉर्मेशन कम थी और वो स्क्रीन थी। तो हम चेक करें, इंफॉर्मेशन ब्लास्ट को अवॉइड करें। स्टोरी फॉर्मेशन, पहला एस क्या कहता है? नो स्टोरीज प्लीज, नो डिटेल्स ऑफ द थिंग्स, स्टॉप एंड चेक। स्टोरी क्रिएट करने भी है तो पॉजिटिव नोट के करें, नेगेटिव नहीं। Because my thoughts, my inner world, they come out and they conspire to create my outer world. I need to check it. And then next I कहता है ignorance को खत्म करें। Sit with yourself, be a spiritual seeker. अपने आप को पहचानिए, spend time with yourself. अपने inner world को प्यार कीजिए। जो अपनी स्टेज को प्यार करेगा उसको दूसरों के साथ लवफुली चलना भी आएगा और हर तरह की क्राइसिस को मैनेज करना आएगा। लव इज अ वेरी वेरी बिग पावर। और लास्ट एस हमें कहता है सीकिंग खत्म कीजिए। जो अंदर सीकर्स बन गए, सीकिंग एवरी टाइम समथिंग और अदर, नो, स्टॉप इट, स्टार्ट गिविंग। देने वाले मोड में आते ही अब सोच के देखो, देने वाले का हाथ ऊपर और लेने वाले का हाथ नीचे। देने वाले को थॉट नहीं करना पड़ता कि मैं क्या दूं, क्योंकि उसके पास तो अबंडेंट है, उसको तो सिर्फ देना है। लेने वाले को तो कितना संकल्प चलाना पड़ता है, कैसे किसी से निकलवाऊं। और देने वाले को दाता ऑटोमेटिकली देता है। एक छोटी सी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। वंस हमारे ऑस्ट्रेलिया के सेंटर पर, दे आर वेरी टू ब्यूटीफुल ब्रदर्स, दे आर लाइक स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। तो वो आए माउंट आबू में। तो हमारे जो सीनियर दादीज उनको हम कहते हैं, जो माउंट आबू में डेडिकेटेड लाइफ में पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रही हैं। तो जिन्होंने अभी पीछे 2 महीने पहले ही शरीर छोड़ा, हमारे दादी जानकी जी। दादी जानकी उनको स्टेज पर उन दोनों ट्विन ब्रदर्स को मिल रहे थे। तो हमारी स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा एक सुंदर एक नियम है, एक रिचुअल है कि
कि जब भी कोई सीनियर सिस्टर्स से या ब्रदर से मिलता है तो उनको कोई ना कोई गिफ्ट या टोली या प्रसाद देते हैं। प्रसाद समझते हैं? टोली, टोली मतलब जैसे छोटे बच्चे को मम्मी पापा चीजी देते हैं ना, जैसे ब्रह्मा कुमारी में उसको टोली वर्ड बोलते हैं, प्रसाद। हम अभी आपके कॉलेज में अगर आपको कराने आते हैं ये काम इन क्राइसिस, तो हम भी आपके लिए टोली लाते हैं। अभी तो ऑनलाइन तो नहीं खिला सकते हैं, पर कभी मिलेंगे तो जरूर खिलाएंगे। तो ऐसे जानकी दादी उन 2 ट्विन ब्रदर्स से मिले। तो पहले ब्रदर जब आए सामने दादी के, दादी ने उनको एक एप्पल दिया, वो चले गए, थोड़ा साइड पे खड़े हो गए। और जब दूसरे ब्रदर आए, उन्हीं के दोनों ट्विन्स हैं, तो उन्होंने दादी को देखा, दादी ने भी उनको देखा, 1 मिनट वो स्पिरिचुअल ग्लांस एक्सचेंज किया। फिर दादी ने अपने साथ जो दादी के केयर टेकर दीदी थे उनको कहा, गेट हिम अ बास्केट ऑफ एप्पल्स। तो फर्स्ट ब्रदर को 1 एप्पल वाज गिवन एंड द सेकंड ब्रदर विदाउट एनी डिमांड ही गॉट द बास्केट ऑफ एप्पल्स। तो पहले वाले ब्रदर ने, बिकॉज विदेशी बहुत ब्लंट होते थे, पहले वाले ने तो सीधा दादी का पूछा, दादी और वेरी पार्शियल, आपने मुझे तो एक एप्पल दिया, इसको तो पूरा बास्केट दिया। दादी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। दादी ने कहा, आई नो यू, तुम अकेले खाओगे, तुम्हारा नेचर मुझे पता है, और ये शेयर करके खाएगा, मुझे पता है, ये जिसको भी मिलेगा पहले उसको देगा फिर खाएगा। तो जो देकर खाता है, जिसका नेचर है बांटने का, उसको मांगना नहीं पड़ता, पर उसको ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा मिलता है, एक अपने पास रखने के लिए और बाकी शेयर करने के लिए। तो हमें बहुत अच्छी एग्जाम्पल, इससे हमें बहुत अच्छा एक मैसेज मिलता है, द मोमेंट आई क्रिएट अ थॉट ऑफ गिविंग। आप सोच के देखो, वातावरण में आज कितना फियर का एनवायरनमेंट है, इट इज टू मच फियर अराउंड मी, इट इज टू मच पेन एनर्जी अराउंड मी। उसमें अगर मैं भी अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर पेन क्रिएट करूंगी, सो व्हाट आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड। हम अपने आप को अदरवाइज बहुत कहते हैं, वी आर यूथ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज वर्ल्ड को यूथ की इस एनर्जी की जरूरत है कि जब सारी दुनिया सफर कर रही है, सबको शांति सुख प्रेम चाहिए, प्लीज ये वाली जिम्मेवारी, बी द टॉर्च बेयरर। अब मुझे ये जिम्मेवारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है कि हर सिचुएशन में एक तो राइट वे से रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, how I have the ability to respond positively in a pure way, और कैसे मुझे सारे वातावरण में अपने मन की शांति की रेडिएशन स्प्रेड करनी है। अगर वायरस कंटेजियस होकर स्प्रेड हो सकता है, तो हम ये पॉजिटिव मैसेज भी तो स्प्रेड कर सकते हैं ना, कि मैं पूरे वर्ल्ड के साथ हूँ। इफ आई एम एट पीस ऑफ माई माइंड, तो आप इमेजिन करो उस समय वातावरण कैसा होता है। एक व्यक्ति घर में आए और बहुत ज्यादा केओस क्रिएट करे, ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, समझ नहीं आती, सैनिटाइज नहीं किए हाथ, इतना नेगेटिव नेगेटिव बोले। तो जो घर में बहुत सारे 5-6 लोग बैठे थे, उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। वो एक व्यक्ति जो बाहर से आया, बहुत कुछ नेगेटिव एनर्जी से बात कर रहा है, बहुत हे वायर होके बोल रहा है, पर बाकी 6 ने बहुत प्यार से बात की, बहुत पीसफुली रिस्पॉन्ड किया, उसको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं गए। वो जो एक व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी लेकर आया, वो जो 6 पॉजिटिव तरीके से बात कर रहे थे, तो उस एक को क्या लगेगा, वो दिल करेगा उसका कि मैं भी चेंज हो जाऊं। तो पॉजिटिव में नेगेटिव को फिनिश करने की ताकत है। इसलिए सीकिंग स्टेज को खत्म करके अभी देना शुरू करें। राइट नाउ द वर्ल्ड नीड्स मी, आई एम अ पीस मैसेंजर, आई एम अ पीस पर्सोनिफाइड सोल। तो रोज अपने आप को याद दिलाएं कि मुझे शांति का मैसेंजर बनकर पीस, लव, कोऑपरेशन रेडिएट करना है, क्योंकि दुनिया को इस समय उसकी जरूरत है। अपने घरों पे बैठकर भी सिर्फ सोच से भी हम ये काम कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो हम जैसे स्पिरिचुअलिटी में ये भी मानते हैं कि लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। आप जो बोलकर दूसरों को मैसेज देते हैं, वो आपकी सोच से जल्दी ट्रेवल करता है, राइट? इसलिए अपने प्लीज थॉट्स को हम पावरफुल बनाएं, गिवर बन जाएं। तो द मोमेंट आई स्टार्ट गिविंग, ही द गिवर, ओशन, गॉड स्टार्ट गिविंग मी। और काम रहने के लिए CALM, ये 4 बातें और पक्की कर लेते हैं। क्राइसिस आई गेस सबको क्लियर हो गया है। विवेक भाई, सबको ये पहले आप ये वर्ड सबको प्रिंट करके भी सबको मैसेज कर देना, ताकि सब इसको बार बार रिवाइज करते रहें। और काम शब्द हमें कहता है चूज राइट इमोशनल डाइट। रोज हम कुछ हेल्दी पढ़े, जैसे अभी आपको पहले बताया, उठने के बाद और सोने से पहले सोशल मीडिया नहीं देखना। अगर हमारा टू मच स्लेवरी है ऑन द गैजेट्स कि हमने कुछ ना कुछ तो खोलना ही है व्हाट्सएप पर, तो प्लीज हमारे यूट्यूब पे, हमारे और जो आपके सोशल मीडिया हैं उस पर पीस ऑफ माइंड चैनल या अवेकनिंग TV चैनल या ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी दीदी, बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी के वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर मिलते हैं। यू कैन चूज द टेन्योर, टाइम टेन्योर, चाहे 15 मिनट्स का स्लॉट ले लें या 30 मिनट्स का, पर कुछ हेल्दी इन दोनों टाइम्स पर
आधा घंटा सोने से पहले और आधा घंटा उठने के बाद जरूर अंदर डालें, क्योंकि अगर अच्छे थॉट्स, खुशी के थॉट्स, प्यार के थॉट्स, पीसफुल थॉट्स अंदर डाले होंगे, अपने अंदर का कॉन्शियसनेस का बॉक्स हेल्दी ट्रेजर से भरा है, तभी तो हम फिर पूरा दिन उसको यूज या उससे सर्विस कर पाएंगे ना। सारा दिन हमने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ही अंदर डाला। इमेजिन करो किसी कंटेनर में सबसे पहला जो लेयर था वो हमने काउ डंग का डाला, गोबर, और फिर सारा दिन उसके ऊपर हम बहुत अच्छी हेल्दी या बहुत फ्रेग्रेंट खीर केसर वाली डाल रहे हैं, तो वो जो फर्स्ट लेयर था वो उसको इफेक्ट करेगा ही करेगा। सुबह उठते हमारा ब्रेन एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है, स्पंज की तरह, सबसे ज्यादा उसकी रिटेंशन कैपेसिटी होती है। और सुबह उठते हम व्हाट्सएप पे या अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे कुछ ऐसे कमेंट्स या ऐसे वीडियोस देख लेते हैं जो सारा दिन फिर वो काउडंक वाले लेयर की तरह काम करता है। पूरा दिन कुछ अच्छा भी सुनेंगे ना, बहुत ज्यादा हेल्दी काम नहीं होगा। तो सुबह उठते न्यूज़पेपर, सुबह उठते नेगेटिव न्यूज, नो, अ बिग नो टू दैट। चूज राइट स्पिरिचुअल डाइट इफ यू वांट टू स्टे एट काम। तो सी हमें कहता है चूज राइट स्पिरिचुअल डाइट। फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमें सुख शांति क्यों नहीं है। सुख शांति इंफॉर्मेशन से आती है, हमारे थॉट्स में, और हमारे थॉट्स इंफॉर्मेशन से क्रिएट हो रहे हैं। जो रोज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी तरह के तो विचार हमारे चलेंगे ना। इसलिए राइट अपनी डाइट करें स्पिरिचुअलिटी की। उसके बाद ए हमें कहता है क्रिएट द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सारा टाइम सिर्फ शिकायतें शिकायतें, दुनिया में ये ठीक नहीं हो रहा, वो कंट्री ये ठीक नहीं कर रही, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। तो शिकायतों वाले को सारा टाइम अगर चारों तरफ सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है, तो नेगेटिव बाहर भेजा तो वापस भी क्या आएगा? द एनर्जी यू सेंड आउट will return to you definitely. It is the law of attraction. What you give you get back multifold. इसलिए परमात्मा हमें सिखाते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हर बात के लिए थैंक्स करें। आज भी चेक करें, अभी भी इस सिनेरियो में भी जब ये बहुत बड़ा नेगेटिव क्राइसिस वाला पीरियड चल रहा है, उसमें भी हम चेक करें, कई लोगों से कई बातों में हम बहुत बेटर हैं। आज भी चेक करो, जरा अपनी फिजिकल बॉडी को ही देख लो, कई बातों में फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, अभी भी घर में है, सेफ है, खाने को तीनों टाइम मिल रहा है, कपड़े हैं, सब कुछ है। तो इन बातों के लिए कभी स्पेशल बैठ कर भी हमने परमात्मा को थैंक यू बोला? जो रोज हमें मम्मा कुकिंग दे रही है, खाना दे रही है, उनको स्पेशल जाके कभी बोला मम्मा यू आर द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच फॉर द हेल्दी फूड यू आर गिविंग मी। आज बाहर का जंक बंद हुआ है, हमें घर का हेल्दी खाने का नसीब हुआ है, इसके लिए कभी हमने थैंक्स किया? कई सारी नेगेटिव बातों से तो हम इसके कारण बच गए हैं, जो ये नेगेटिव क्राइसिस आए हैं। तो इसलिए शुक्रिया के गीत गाने से शिकायतों के गंदे गाने बंद हो जाएंगे, और जो बार बार शुक्रिया का गाना गाएगा उसको शुक्रिया कहने के चांसेस भी ज्यादा मिलेंगे। प्लीज अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट। द मोमेंट आई से वाओ, सो आई इनवाइट द वाओ सिचुएशंस नियर मी, बट द मोमेंट आई से वाई वाई हाय हाय, तो जितना हाय हाय बोला उतना हाय हाय करने के चांसेस और बढ़ गए। जितना वाह वाह बोला, वहां मेरा भाग्य, वहां मेरा परमात्मा, वहां मेरी किस्मत, वहां मैं आत्मा। तो ये वाह वाह का गाना गाने वाले को वाह वाह वाले लोग ही मिलेंगे, और वाह वाह वाली चीजें ही उसके सामने आएंगी। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इफ यू वांट टू स्टे एट काम। एंड देन एल सेज लिसन टू योर इनर सटल वॉइस। हम सबके अंदर आपने देखा होगा, जब भी कोई बात आती है, कोई परिस्थिति आती है, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइलेंट कॉर्नर इनसाइड मी, दैट इनर कॉन्शियसनेस, द सोल। और वो जो इनर वॉइस है हम सबको हमेशा हर प्रॉब्लम पर कहती है एवरीथिंग इज ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। पर हम उस इट्स ओके वाली बात को दबाकर फिर से अपनी नेगेटिव स्टोरी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। नहीं, पर अगर ये हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। प्लीज आज हम ये चेक करें इस पॉइंट को, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, बात आती है, थोड़ा मोमेंट, थोड़ा सा मोमेंट टाइम, जैसे पॉज एंड पॉन्डर कहते हैं ना, हम थोड़ा सा टाइम अपने साथ साइलेंटली बैठे। अच्छा बात आ गई, ठीक है, बात तो हो गई ना, जो भी हो गया, एक बार तो नेगेटिव हो गया, कुछ भी किसी ने कह दिया, उनके मुंह से वो तीर निकल गया। अब मैंने कुछ मोमेंट के लिए बिल्कुल पॉज करके साइलेंटली चेक करना है, अब मुझे क्या करना है। तो जो अंदर का एक सटल वॉइस है, हमारे इनर वर्ल्ड की सटलिटी को बार बार विजिट करने की जरूरत है, जो स्पिरिचुअलिटी में हम करते हैं। जितना मैं अपनी सटल साउंड को सुनता जाऊंगा, जो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वो परमात्मा की टचिंग से आती है। भगवान का बच्चा अंदर बैठा है ना, सोल, तो सोल को गॉड सुप्रीम सोल बार बार टच करता है अच्छे आंसर्स, पर हम बार बार अपने आप को फिजिकल समझ लेते हैं। मैं प्रीति हूँ, मैं एमएससी हूँ, मैं डीएवी कॉलेज हूँ, मैं सिस्टर हूँ, मैं ब्रदर हूँ। जब मैंने अपनी आइडेंटिटी के मैं को
फिजिकल लेबल्स के साथ अटैच कर लिया, तो वो जो इनर रियल आइडेंटिटी थी उसको मैं मीट नहीं कर रही हूँ। और उस रियल आइडेंटिटी को तो परमात्मा, बीइंग द फादर ऑफ द सोल, नॉट द बॉडी, प्लीज रिमेंबर दिस, गॉड टचेस द सोल, नॉट द फिजिकल ह्यूमस। उसने अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई है, उसके सोल्यूशंस अगर टच भी करने हैं, तो वो मेरे इनर बीइंग को करेगा, मुझ आत्मा को, फिजिकल को नहीं। तो अपनी सटल वॉइस को बार बार सुनना है, बार बार अपने साथ साइलेंट कॉर्नर में बैठकर उस सटल वॉइस के एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल, इस फॉर्मूला को बार बार सुने तो काम रहना तो बहुत ईजी है। और लास्ट में एम कहता है रोज दिनचर्या में कम से कम 15 मिनट्स हमारे रूटीन में ऐसे होने चाहिए कि हम मेडिटेट करें। मेडिटेशन इज नथिंग, मेडिटेशन कोई बहुत बड़ी क्रिया नहीं है। आपको उसमें अपने कोई अटायर को चेंज नहीं करना, कोई फिजिकल अपनी पोजीशन ऊपर नीचे नहीं करनी, टांगे ऊपर, टांगे ऊपर और सिर नीचे, उसकी जरूरत नहीं है, कोई आसन नहीं। मेडिटेशन सिंपली मीन्स हीलिंग, मेडिटेशन सिंपली मीन्स राइट थिंकिंग। So being with yourself, spending time with yourself, visiting your world of inner feelings, inner thoughts, inner consciousness. एक स्टोरी के साथ इसको एंड करूंगी। काम आई गेस क्लियर है? Choosing right spiritual diet, attitude of gratitude, listening to your subtle inner voice, and for all these three things to happen naturally and normally to you, you have to meditate. M says meditation, and meditation says think right, think normal, think as you are, be in that reality of who you are. Story, एक बार क्या हुआ, I guess आपने सुना होगा, maybe I'm not remembering the name properly, but there was Sir Thompson who was the first person to discover the dictionary, English dictionary, first English dictionary. तो वो जब ये काम कर रहे थे अपना डिक्शनरी बनाने का, he took 12 years to compile it. फाइनली जब वो 12th year उनका आ गया, he was married, तो उनकी वाइफ को बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि वो सारा दिन अपनी बुक्स में एंगेज रहते थे, ऑलवेज पढ़ाई 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 और वर्ड मीनिंग्स। तो एक दिन उनकी वाइफ को इतना गुस्सा चढ़ा, जबकि आज तो फाइनल डे था कंपाइलेशन का। तो सर थॉमसन कहीं गए हुए थे वो पूरा वर्क कंपाइल करने, तो उनकी वाइफ ने क्या किया, इतना वो 12 साल का फ्रस्ट्रेशन अंदर कलेक्ट हो गया था, उसने कुछ नहीं, उसको उसकी विजडम ब्लॉक हो गई थी, उसने पूरी लाइब्रेरी में आग लगा दी। इन्होंने 12 साल मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, मुझे समय नहीं दिया, कोई अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, मुझे कभी पूछा नहीं, ऑल दैट नेगेटिव क्लटर, अ बिग स्टोरी अगेन इनसाइड। So the library was burning. 12 years of my effort, suppose. Just imagine if you were at the place of Sir Thompson. आपने 12 साल मेहनत की एक डिक्शनरी क्रिएट करने में, और दुनिया को बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं डिक्शनरी का, और आपकी वाइफ ने, आपके घर के एक मेंबर ने, जिसको पता है आप कितनी लेबर कर रहे हैं, उसने उसको कुछ ही मिनट्स में बर्न आउट कर दिया, पूरी लाइब्रेरी ऑन फायर। आपका रिएक्शन क्या होता? अब तो बहुत वेरिएड रिएक्शन आएंगे, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं अंदर। थॉमसन घर आए, उन्होंने देखा द होल लाइब्रेरी ऑन फायर, सब जल गया, नॉट इवन अ सिंगल बिट ऑफ पीस ऑफ पेपर वाज लेफ्ट, सब जला हुआ। और फाइनली गलत काम करने के बाद तो अंदर कॉन्शियसनेस बोलती है ना, ओ ये क्या किया। तो उनकी वाइफ मिनी, उसको बहुत डर लगा हुआ था, बहुत फियर में थी, और वो कहीं घर के किसी एक कोने में बिल्कुल ऐसे छुप के दबक के बैठी हुई थी। तो थॉमसन उनको ढूंढते हुए मिनी 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 उस जगह पे पहुंचे जहाँ पर वो थी, और मिनी को बोला थैंक यू सो मच, मैं आज सोच रहा था कि 12 साल तक आई वाज क्रेजी फॉर बुक्स एंड पढ़ाई, मुझे इतना शौक हो गया था बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करके, मैं इतना इंग्रॉस्ड रहता था उस लाइफ में, तो मुझे लग रहा था अगर ये 12 साल की मेरी मेहनत अभी कंपाइल हो गई, आई एम डन विद माई वर्क, नाउ हाउ विल आई लिव, इनके बिना तो मैं जी नहीं सकता। और आज तुमने इसको आग लगाकर मुझे 12 साल की जिंदगी और दे दी, सो आई एम सो थैंकफुल टू यू मिनी। सी द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ही थैंक्ड हर, और उसको फाइनली इतना जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ गिलानी, आत्मगिलानी हुई, उसको इतना माइंड हुआ कि मैंने क्या किया, और ही इज थैंकिंग मी, ही इज सो ग्रेट। फाइनली जो काम 12 साल में हुआ था भी, उसको 3-4 साल में दोनों ने मिलकर पूरे वर्ल्ड को डिक्शनरी का गिफ्ट दिया। सो दिस इज काम इन क्राइसिस। बात बड़ी नहीं है, पर उस बात को मैंने अपने मन में पकड़ कर क्या चलाया, उस पर नेगेटिव चिंतन किया या पॉजिटिव चिंतन, इट इज माई चॉइस। सो प्लीज क्राइसिस अवॉइड करने के लिए, क्राइसिस के जो पॉइंट्स आपको बताए उसको बिग नो और काम रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए, रोज को स्पिरिचुअल अच्छा पढ़िए, क्योंकि ये समय हमें मिला है परमात्मा की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट।
अगर हमने इस समय कोई यूज नहीं किया, फिर आने वाला समय हमें क्वेश्चन करेगा। तो अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज हमें पूछ सकते हैं। बाकी ब्रह्मा कुमारी ऑनलाइन अवेलेबल है, हमारा learnonlinemeditation.org, दिस इज अ साइट जहाँ आप ऑनलाइन मेडिटेशन भी सीख सकते हैं। बाकी ब्रह्मा कुमारी इसका विवेक भाई को हम बता देंगे। हम बहनें भी जो ऑनलाइन कोर्सेज कराती हैं, पूरा हमारा जो 7 डेज का बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्स है, इंडक्शन कोर्स है, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। देयर इज लॉट्स ऑफ मटेरियल टू बी स्पिरिचुअल नाउ। तो इसलिए अभी ग्रॉस लेवल में ना जीकर थोड़ा अपने अंदर सटल लेवल पर आ जाइए, क्योंकि सटल लेवल में अभी भी बहुत सारा पीस भरा है। ग्रॉस लेवल पे भले वो कम हो गया है, पर अगर सटल लेवल को रोज विजिट करेंगे तो ग्रॉस पर वो अपने आप इफेक्ट देगा। अभी थोड़ी देर के लिए आपके क्वेश्चंस लेने से पहले, कैन वी सिट फॉर मेडिटेशन फॉर अ मिनट? तो अभी जहां जहां पर भी सभी बैठे हैं, कुछ मोमेंट्स के लिए रिलैक्स योरसेल्फ। कोशिश कीजिए फिजिकल बॉडी भी ज्यादा हिले नहीं, अपनी फिजिकल बॉडी को स्टिल करें। आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करें तो बहुत अच्छा। Otherwise, we do meditation with open eyes. But right now, on this platform, it's okay to close them. आंखें बंद कीजिए कुछ मोमेंट्स के लिए। फील करें आप एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन में हैं। अपने आप को एक गार्डन में लेजर वॉक करता हुआ देखें। अपने चारों तरफ एक वाइट बबल देखें और महसूस कीजिए, दिस इज द गार्डन ऑफ माई इनर वर्ल्ड, दिस इज द गार्डन ऑफ माई कॉन्शियसनेस। जैसे गार्डन में बहुत सारे ट्रीज, फ्लावर्स होते हैं, ऐसे अपने कॉन्शियसनेस के इस गार्डन में अपनी माइंड की स्क्रीन पर वैल्यूज के फ्लावर्स देखें। आज तक भी अपनी लाइफ में मुझे अपने अंदर जो जो क्वालिटीज पसंद आई हैं, जिसके लिए मुझे दूसरे भी अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत कोऑपरेटिव हैं, आप बहुत लविंग हैं, आप हमेशा चेयरफुल रहते हैं, आप बहुत हम्बल हैं, कॉन्फिडेंट हैं। तो एक एक क्वालिटी को अपने जीवन की फ्लावर्स के रूप में देखिए। मेरे कॉन्शियसनेस के गार्डन में मुझ आत्मा, मुझ इनर बीइंग के इनेट वैल्यूज वैरायटी फ्लावर्स के रूप में कितनी फ्रेग्रेंस दे रहे हैं। भले बाहर की दुनिया में बहुत शोर है, सबके मन चिल्ला रहे हैं, हर कोई एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहता है। There is lots of fear, pain, anxiety, stress, but it is in the gross world. I am in the garden of my inner world. और इस inner world में कोई शोर नहीं है। I am at peace. तो आज अपने आप को ये पक्का करा दे, मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ। अपने बॉडी के माथे पर मैं अपने आप को एक स्टार देख रहा हूँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सोच के देखिए, जहाँ माथे पर बिंदी या टीका लगाते हैं, दोनों आईब्रोज के बीच में there is a beautiful pinpoint of light. This is me. I am a being. I am a soul. और मेरे अंदर गॉड ने पीस, हैप्पीनेस, लव, ये सारे डिवाइन क्वालिटीज भर दिए हैं। They were already within me, पर मैंने इस गार्डन को कभी विजिट ही नहीं किया था। आज मैं अपने गार्डन के फ्लावर्स को देख रहा हूँ। So I am peace, I am love, I am happiness। और महसूस कीजिए, मुझ बीइंग का क्रिएटर, हम सब के पिता, वो भगवान, गॉड फादर, जैसे अभी हमारे साथ है, उनकी प्रेजेंस फील करें।
सोच के देखें, सिर के कुछ इंच ऊपर I can feel God's presence. Just imagine there are 1,000 suns put together and their light has been compressed, condensed into a small tiny ball. 1,000 सूर्य इकट्ठे एक छोटे से डॉट में समा गए. इतना ब्राइट है गॉड, the sun of light, the sun of peace. परमात्मा उस सुप्रीम सोल को अपने सिर के ऊपर प्रेजेंट फील करे और उनकी तेज लाइट का शॉवर अपने ऊपर आता महसूस कीजिए. और जैसे उस सटल वॉइस गॉड की लाइट के फॉर्म में मुझसे बात कर रही है, ओ माय स्वीट चाइल्ड, डोंट वरी, आई एम विद यू, आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर टफर टाइम्स, यू आर द पीस मैसेंजर फॉर द वर्ल्ड. तुम्हें सारी दुनिया को शांति दूत बनकर शांति देनी है. द वर्ल्ड नीड्स यू, यू आर माई हेल्पर. तो मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, मैं एंजल हूँ. मैं जहां हूं वहां फियर हो ही नहीं सकता, पेन हो ही नहीं सकता. सो आई एम एन इटर्नल सोल with eternal peace and happiness. I am at calm. मेरा मन शांत है, बाहर चाहे कितनी भी अशांति हो, पर मेरे चारों तरफ परमात्मा की लाइट का घेरा है. Nothing can disturb me. My peace influences the outer world, but the crisis in the outer world, they can't influence my inner world. I am powerful. कोई भी बात मेरी और परमात्मा की शक्ति से बड़ी नहीं है. ये बात अपने को पक्का करा दे. और जितना जीवन में मिला है उस एक एक बात के लिए परमात्मा को थैंक्स करें. थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन मी. थैंक यू. आपके भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. Ma'am, I have a question. जी ब्रदर. Ma'am, as you said, if you can manage the world inside you, then you can easily manage the outer world. जी. Ma'am, share some insights on it. Share some practical applications in layman language. ओके भैया, जैसे इनर वर्ल्ड का भी बताया ना, द वर्ल्ड ऑफ माय फीलिंग्स एंड इमोशंस. जैसे अभी हमने वो साइकिल वाली एग्जांपल ले ली कि सोचिए छोटी सी बात है कि कोई आपके घर में कोई नेगेटिव इवेंट हो गया, जैसे चोरी जैसी कोई बात हो गई, पर अंदर अगर मेरे पॉजिटिव मतलब मैं अपने अपने अंदर की फीलिंग्स को अगर पॉजिटिव रखती हूँ, बिकॉज मैं रोज मेडिटेट करती हूँ इस तरह से, मैं रोज अपने आप को परमात्मा के दिए हुए ट्रेजर से भरती हूँ. मैं रोज अपने आप को याद दिलाती हूँ कि चीजें आएंगी जाएंगी, बातें आएंगी जाएंगी, लेकिन मुझे अपने अंदर की सुख शांति की कॉस्ट अपनी शांति को, अपनी हैप्पीनेस का इंपॉर्टेंस देती हूँ. तो आने वाली बात आती है, लेकिन मैं पीसफुल या हैप्पी होने के कारण उस बात के सोल्यूशन की अप्रोच में जाती हूँ. प्रॉब्लम मुझे फिर प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन मुझे उसका सोल्यूशन दिखाई देता है. तो मेरा इनर वर्ल्ड मेरी प्योर फीलिंग्स का मेरे आउटर वर्ल्ड को इस तरह से मैनिफेस्ट करता है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम ना बनकर मुझे सिर्फ एक मैसेज देने आती है. जैसे सपोज करो आपको कोई बात किसी ने कह दी, पर अगर आपके अंदर टॉलरेंस पावर है, आप रोज परमात्मा को याद करते हैं, और आप, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ हम इस तरह से बैठ के मेडिटेट नहीं करते, तभी मैंने अभी बोला था हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, और वो नॉलेज हमें बताती है कि वर्ल्ड स्टेज है, हम सब एक्टर्स हैं, हर आत्मा इस मूवी में अपना अपना रोल प्ले कर रही है. दो रोल्स, सोल्स का रोल सेम नहीं हो सकता. वी ऑल आर डिफरेंट बट नन ऑफ अस इज रॉन्ग. जब इस तरह की बातें हम रोज सुनते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉलेज, ज्ञान को सुनकर उस पर अपने मन को फोकस करके हमारे अंदर बहुत एम्पावरमेंट हमें फील होती है. तो किसी ने मुझे कुछ कह दिया कि दीदी यू आर हॉरिबल, आप तो इतना फास्ट बोलते हैं, आपको तो बोलना ही नहीं आता, आपने क्या कपड़े पहने हैं, किसी ने किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव कमेंट हमें कर दिया,
पर मेरे अंदर सुबह-सुबह हम स्पिरिचुअलिटी में परमात्मा को याद करके अपने अंदर उस सहन शक्ति को देखते हैं कि वो बढ़ती जा रही है। तो सामने वाले ने कुछ कहा, तो मैं उसको एक नेगेटिव एंगल से ना देखकर अपने इनर वर्ल्ड की अच्छी फीलिंग से नहीं, इट्स ओके। अगर मेरा रियल ब्रदर होता और मुझे ऐसे कमेंट कर देता, तो उसकी बात तो मैं इतनी माइंड करती नहीं। ये मेरे नेबर ने मुझे कहा है तो मैं इतना उसको याद रख रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी हमें ये भी सिखाती है कि वी ऑल बिलोंग टू द वन कॉमन फैमिली, वन गॉड एंड वन फैमिली। तो हम सब एक पिता के बच्चे, भाई भाई, इट्स ओके। इसने कुछ बोल भी दिया तो उसका अपना पर्सपेक्टिव है, उसके नेगेटिव कमेंट से मैं नेगेटिव तो नहीं होगी ना। दूसरा मुझे कुछ भी बोले, पर जब तक उनकी बोली हुई बात को मैं अपने लिए नहीं बोलती, तब तक वो मुझे हार्म या डेंजर नहीं दे सकता। क्लियर हुआ आपको पॉइंट? जैसे किसी ने मुझे कुछ भी कहा, पर मैंने उस बात को एक्सेप्ट ना करके फिर भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते सामने वाले को रिस्पेक्टफुली डील किया, बात अपनी भी रखी, लेकिन अपने वर्ड्स, अपने टोन को मैनेज किया, उनकी लैंग्वेज को कॉपी नहीं किया। तो ये मेरा इनर वर्ल्ड ऑफ पीस, टॉलरेंस मेरे आउटर वर्ल्ड को चेंज करता है। आई होप इट्स क्लियर। Got it, ma'am. Thank you. ओके। अगर और किसी को भी क्वेश्चन है, so they can either put it into the chat box or they can just unmute themselves and they can ask. एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम, अगर कोई हमें बोलता है कि मतलब हमारे कारण वो हर्ट हुआ है और आगे से वो हमें बोलेगा कि तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज हो जाए, तुम्हारी लाइफ में कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो, तो क्या उससे हमारी लाइफ में इफेक्ट पड़ता है? मतलब अगर सामने वाला अगर जैसे कि कहते हैं कि बद्दुआ में देता है, तो क्या उस चीज पे इफेक्ट पड़ता है हम पे? अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आजकल हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं, लोगों के मुख से अच्छा तो कम ही निकलता है, तो इस तरह के नोट्स निकलते हैं। इट्स ओके। सबसे पहले तो अपने आप को ये समझाना है कि जैसे अभी बोला ना, सामने वाला कुछ भी कमेंट करे, जब तक वही कमेंट मैंने अपने आप को नहीं दिया तो वो बद्दुआ नहीं लगती है। आपने अगर अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करके रखा है, आप रोज मेडिटेट करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उनकी लाइट के शॉवर को रोज एब्जॉर्ब करते हैं, और चलते फिरते भी जैसे हम प्रैक्टिस ये जरूर करें कि जब भी हम किसी से बात करें, हम उनके प्रति क्या वाइब्रेशन भेज रहे हैं वो हमारे पास वापस आती है। सामने वाले ने जो सोचा, ठीक है, वो भी नो डाउट हमें इफेक्ट करता है, पर हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं वो हमारे चारों तरफ एक बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव सर्कल क्रिएट करता है। अगर सामने वाले ने नेगेटिव सोचा और मैं भी अपने लिए नेगेटिव सोच रही हूँ, तो वो तो फिर बहुत अच्छी वाली बद्दुआ लगेगी। और सामने वाले ने नेगेटिव सोचा पर हमने उसके नेगेटिव से भी अपने लिए कुछ पॉजिटिव निकाल लिया, या उसके लिए सोचा कि नहीं, ये इनका पर्सपेक्टिव है, इन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी लाइफ में ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ भी नेगेटिव हमें जो भी आपने एग्जाम्पल दिया, कमेंट कर दिया, पर हमने उसको एक नेगेटिव ना लेकर अपने प्रति ये सोचा कि नहीं, उनके साथ जब मैं नेक्स्ट टाइम बिहेव करूंगी तो मैं अपनी लैंग्वेज को या अपनी वर्ड्स को चेक करूंगी कि कभी किसी के मुख से मेरे लिए ऐसे निकलने की नौबत ही ना निकले। तो देखो, अगर हमें कोई नेगेटिव बोलता है तो ये एक हमें चांस मिल रहा है ना कि हम अपनी एक्शंस को चेक करें कि शायद मेरे एक्शंस या मेरे थॉट्स में कुछ ऊपर नीचे था, जो सामने वाले ने भी मेरे से सॉरो रिसीव किया और अब वो भी मुझे सॉरोफुल कुछ वर्ड्स दे रहा है, पर उनके सॉरोफुल वर्ड्स या उनकी बैड कमेंट्स को मैंने अपने लिए स्वीकार नहीं करना है और ये उनकी तरफ फिर पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है। तो जब भी हमारे तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड करे, हम उनकी नेगेटिव एनर्जी को पकड़कर अपने लिए नेगेटिव ना सोचें, हाय देखो मुझे ऐसे बोल दिया, अब तो सच में मेरी लाइफ में ऐसा हो जाएगा। नहीं, हम दूसरों को उनकी भेजी हुई बद्दुआ के बाद भी दुआ दें, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। और सोच के देखो, जैसे हम कई बार आपने सुना होगा, शिवानी दीदी बहुत अच्छा इस पे बताते हैं, किसी ने आपकी तरफ ब्लैक बॉल भेजा पर आपने उसकी तरफ इन रिटर्न ब्लैक नहीं भेजा लेकिन व्हाइट भेजा, तो जो आप दूसरों को देते हैं आपके पास वो आता है। दूसरे का भी आता है नो डाउट, पर आपका अपना किया हुआ कर्म मुड़कर आता है वापस। ठीक है, तो इसलिए अपनी एनर्जी को दूसरे की नेगेटिव एनर्जी रिसीव करने के बाद भी नेगेटिव नहीं होने देना। तो रोज आप ये सिस्टर ये देखा करो कि आपके चारों तरफ एक व्हाइट घेरा है और आपके सिर के ऊपर एक बहुत सुंदर पॉइंट ऑफ लाइट प्रेजेंट है, जो आपको किसी तरह की भी इस नेगेटिव बद्दुआ से या एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। हमें कोई कुछ भी दे, हमें अपने को भी और दूसरों को भी सिर्फ पॉजिटिव देना है। आज के बाद इस बात को अपने लाइफ का मंत्र बना लें। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके। ये क्वेश्चन है,
पुलकिता वाधवा का कि लाइक इन दीज डेज, क्योंकि अभी सब ऑफ चल रहा है एंड घर पर ही है, तो जो प्रॉपर शेड्यूल होता था बिफोर कोविड-19 वाला, लाइक वी यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वो पूरा स्टडी वाला, सो इट इज गेटिंग अफेक्टेड, क्योंकि हमारा जो स्लीपिंग साइकिल है, शी इज सेइंग इट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड बैडली इन दीज डेज। वो अलबेलापन भी आ जाता है, आलस्य भी आ जाता है, तो हाउ टू मेंटेन इट, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप बताएं। जी जी, एक तो बच्चों में ये याद रखना है कि रूटीन, देखिए अभी आप घर पर हैं तो घर वाले, कई घरों में तो काम वालियां नहीं आ रही हैं, मदर्स को हेल्प की ज़रूरत है, तो अभी तो हमें और एक्टिव और अलर्ट होकर अपने एक एक रूटीन को और अच्छे से सेट करना है। लेजीनेस और पहले देयर वाज फोर्स डिसिप्लिन कि आपको सुबह उठना है क्योंकि आपको कॉलेज जाना ही है, एक था सेल्फ डिसिप्लिन। तो अभी तो हमें चांस मिला है कि अपने आप को हम सेल्फ डिसिप्लिन वाले मोड में ले आए। फोर्स वाला कब तक चलता, तो ये हम सबका टेस्ट आया है एक्चुअली में। तो ये जो लॉकडाउन डेज चल रहे हैं इसमें हमें सबको चेक करना है कि हम जब तक घरों में हैं अपने घरों को ऐसा वातावरण से चार्ज कर दें कि हमारे परफेक्ट रूटीन को देखकर हमारे यंगर्स भी और हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी हमसे सीखें, राइट। तो दूसरों के लिए अभी हमें रोल मॉडल बनना है, तो उसके लिए एक तो अपना अर्ली राइजिंग स्टार्ट करें, क्योंकि जितना हम अपने आप को लेट उठ रहे हैं, लेट उठने के बाद सारा इमेजिन करो क्यों हम सुबह जल्दी उठते हैं। जैसे हम यहाँ पर मॉर्निंग 3 AM हमारा ब्रह्मा कुमारी इसमें उठने का टाइम है, 2:30 AM to 3 AM के बीच में, एंड 4 AM हम सभी बिल्कुल रेडी होके सारी सिस्टर्स, जैसे 9 सिस्टर्स इस सेंटर पे रहती हैं सेक्टर 15 में, तो हम 9 सिस्टर्स रेडी होकर 4 to 4:45 AM हम मेडिटेशन, अर्ली आवर नेक्टर जिसको अमृत वेला मेडिटेशन कहते हैं, उसमें बैठते हैं। और सुबह सुबह अगर आप जल्दी उठकर कुछ हेल्दी पढ़ते हैं या हेल्दी मेडिटेशन वाले थॉट्स अपने आप को देते हैं, पूरा दिन आप कितनी नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम करने से बचते हैं। पर अगर आप उठ ही 10 बजे रहे हैं तो फिर आप अपने स्केड्यूल को नॉर्मल पॉजिटिव रखना चाहते हैं, पर उठते आप फिर सोशल मीडिया में एंगेज हैं, और उस समय 10 बजे तक सारी दुनिया उठ चुकी है और सारे उस कोविड-19 वाले वातावरण में वैसे वाले थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने पॉजिटिव तो अपने आप को दिया ही नहीं ना। 4 से 5 बजे तक कोई भी कोविड-19 वाला नहीं उठा होता, वो सब मेडिटेशन वाले उठे होते हैं। सब अपने आप को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के कारण अपने मन को पॉजिटिव दे रहे हैं। उस वातावरण में अगर हम उठे तो उन पूरे वातावरण में नेगेटिव एनर्जी सोई हुई है 4 बजे, पॉजिटिव एनर्जी जागी हुई है, तो हम बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे। और उसके बाद आप अपने दिन के पूरे स्केड्यूल को अगर प्लान करें तो बहुत कम एफर्ट में आप ज्यादा काम कर पाएंगे, अपनी फैमिली को भी हेल्प दे पाएंगे, अपने काम भी आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। अदरवाइज भी आप एक दिन इसको एक्सपेरिमेंट करके देखो, गेट अप अर्ली, चलो आपको 4 बजे नहीं कह रही हूँ मैं, गेट अप एट 5:30, जल्दी नहाकर थोड़ा एक्सरसाइज करके मेडिटेशन करके, उसके बाद आप देखना बहुत आपको लगेगा कि जैसे 10 बजे तक तो आपने कई सारे काम कर लिए, यू आर नॉट फ्री। और जल्दी सोने से, बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ना पढ़कर आधा घंटा मेडिटेशन के लिए टाइम निकाल कर कुछ हेल्दी पढ़कर जल्दी सोए तो बहुत अच्छा। वो जो 10 to 4 का टाइम है ये हमारे लिए प्रॉपर स्लीप टाइम था, जो हमारी शरीर की क्लॉक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर आज वो जो क्लॉक रिवर्सल हो गई उसके कारण फिर बॉडी भी रिएक्ट कर रहा है, तो मन तो फिर कर ही रहा है। सिर्फ द बॉडी इज क्राइंग तो माइंड की तो क्राइंग चल ही रही है। इसलिए प्लीज इन लॉकडाउन डेज में, क्योंकि हमारे ऊपर अभी कॉलेज का किसी भी तरह का आउटर प्रेशर नहीं है, कोई आउटर रूटीन हमारी नहीं है जो हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़े, तो सब बच्चों से हम्बल स्पिरिचुअल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी अपने रूटीन को थोड़ा सेट करो, चाहे इसको 1-2 दिन ट्राई करके देखिए। ब्रह्मा कुमारी इसमें मेडिटेशन में मैं जब एज ए स्टूडेंट आई ज्वाइंड हियर व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन फाइनल ईयर, इट्स बीन लाइक 16 इयर्स बैक। तो मैं अपने जीवन में देखती हूँ कि मैंने अपने दिनचर्या को दीदीज के अकॉर्डिंग सेट किया, जैसे दीदियों ने बताया, और सच में मुझे लगता था मेरी पढ़ाई पर, मेरे रिलेशंस पर इतना अच्छा उसका रिजल्ट आया। मुझे लगता था कि मैं बहुत फ्री हूँ, मैं अवेलेबल हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए। तो मेडिटेशन एक्चुअली टाइम कंज्यूम नहीं करता, आपका टाइम बचाता है। तो ये आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो। मेडिटेशन आपको कुछ भी फोर्स नहीं करता, ब्रह्मा कुमारी में विशेष, ये इस ऑर्गेनाइजेशन की एज ए ब्रह्मा कुमारी मैं बहुत प्राइड से इस चीज को फील करती हूँ कि यहाँ कुछ भी फोर्स नहीं किया जाता कि आप ये कीजिए। एक्सपेरिमेंट करिए और एक्सपेरिमेंट को एक्सपीरियंस करके देखिए, और फिर इसको और एक्सप्लोर करने के लिए उसको अपनी लाइफ का मंत्रा बनाए। तो सुबह 5 to 6 o'clock के बीच में हमको उठना है, अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा साइलेंस में 15-20 मिनट बैठकर प्लान कर लें कि मुझे ये करना है। और अगर वो हम नहीं भी कर पाते तो डिसहार्टन या डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट दिन के लिए उसको फिर से रीशेड्यूल करें, पर जितना करें उसको पावरफुली करें, उसको कंप्लीट करें। काम कम अपने लिस्ट में रखें, नहीं तो हम कई बार टाइम टेबल में बहुत लंबी लिस्ट बना लेते हैं। और ये हमें टाइम मिला है अपनी फैमिली को सुख देने का, अपने साथ टाइम स्पेंड करने का, तो सिर्फ खाकर सोकर रेस्ट करके टाइम वेस्ट नहीं करें। मीडिया पर भी बच्चों प्लीज कम से कम टाइम स्पेंड करो,
कम से कम इतना तो नहीं होना चाहिए कि जिन गैजेट्स को हमने बनाया आज वो हमें चला रहे हैं, कि 10 घंटा हम फोन पर ही हैं सिर्फ। ये तो बहुत बड़ी स्लेवरी है। आज हम बड़े बड़े IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्रैक करना चाहते हैं। आज हमने खुद की एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक नहीं चलाया, तो बाहर वाली दुनिया की एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए तो हमें कभी भी सीट नहीं मिलेगी। कम से कम अपने हाथों को, अपनी आंखों को, अपने कान को तो हम कंट्रोल करें। कितना किसी से फोन पे बात करनी है, कितना हमें व्हाट्सएप में या यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है, क्या देखना है क्या नहीं देखना, सब उसको स्क्रीन कीजिए प्लीज। मीडिया में इतना नहीं चाहिए, इट्स टू मच। हमारी आईज पर भी, बॉडी पर भी उसका कितना इफेक्ट है। अपनी स्क्रीन करें कि जो हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है बहुत हेल्दी लेनी है, ज्यादा टाइम अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी हेल्थ, अपने रिश्ते, राइट? बाकी सब कुछ बाद में। प्रायोरिटी अपने संबंधों को दें जिनको निभाने आए थे। भगवान के बच्चों को प्यार देंगे तो भगवान का बहुत सारा प्यार अवेलेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके सिस्टर और विवेक, मैं एक थोड़ी सी ना बड़ा सीरियस क्वेश्चन, सिस्टर आप सुन रहे हो मुझे? जी 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 brother. ये शिवांगी शर्मा का एक क्वेश्चन है, इट्स वेरी सीरियस एंड रियली डिस्टर्ब। और शिवांगी, इफ यू कैन स्पीक योरसेल्फ। बेटा सुन रहे हो आप? Yes, sir. बेटा कैन यू स्पीक आउट? Sir, I'm sitting with my mother, so right now it's not Okay. possible. चलो मैं बात कर लेता हूँ यूट्यूब पे। मैम, इनके ब्रदर ने अभी रिसेंटली ना ही कमिटेड सुसाइड। he was suffering from depression and as she has written कि she couldn't take him seriously। तो उसको भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझसे भी ये गलती हुई है कि मैं उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले पाई। तो ये इन दिनों में मैं थोड़ी सी अब शिवांगी क्वेश्चन पूछ। शिवांगी मैम, sister, she is not in a position to speak out। जी It happened very recent, 2-3 days back actually। जी तो ये आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे हमने अभी पीछे वो किस्सा देखा सुशांत सिंह राजपूत का। जी जी थोड़ा सा हॉबी है, मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ता रहता हूँ। तो लोग जी। बहुत सारे दिनों में ना इसी केस के आते हैं, डिप्रेशन, इरिटेशन। तो अब ये पता ही नहीं चलता है कि बंदा कभी कभी कुछ बच्चे धमकी देते हैं। अभी if 10 people are coming to me for consultation, 3 out of or 4 out of it will tell कि my son or my daughter is so much disturbed, या तो उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं है इस लाइफ से, क्या विल कमिट सुसाइड, या डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? दे आर गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज। आई रिमेंबर कि वी यूज्ड टू वॉक 7 to 8 kilometers to reach our school। We started ABCD in 6th class and we used to be without food for hours, 18 hours, sometimes 24 hours। We never faced this depression। I don't know what is happening and she's also very much disturbed कि ऐसा शिवांगी का ना ब्रदर वो कट हुआ था थोड़ा सा, दोबारा रिपीट करेंगे व्हाट हैपेंड एक्चुअली? आई डिडंट गेट। विवेक बेटा क्वेश्चन पढ़ के मैम को, सिस्टर को सुनाओ क्वेश्चन पढ़ के जिसको प्लीज। हाँ जी सर। दीदी क्वेश्चन है कि on 28th of June my younger brother committed suicide by hanging himself। I can't figure out why he did that, but now I am drowning in the sea of regret। I did not take his depression seriously। He had shared these feelings, but I could not understand him। So how to get over this now? मतलब वो बहुत ज़्यादा guilty feel कर रहे हैं अपने आप को। जी जी देखिए शिवांगी बहन, एक तो अपने आप को पहले आप नॉर्मल कीजिए। सबसे बड़ी बात आपको बहुत बड़ी रियलिटी बता रही हूँ, जैसे हमने आइडेंटिटी क्राइसिस की भी बात की। आज सबसे बड़ी रियलिटी जो हम फेस नहीं कर पा रहे हैं कि एक तो डेथ किसकी हुई। चलो हम एक बार उस पॉइंट को छोड़ दें। आई नो इट्स वेरी इजी टू से सिटिंग हियर, बट जो फेस कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। पर अभी बहुत बड़ी आपको एक बात बता रही हूँ, क्योंकि इसको सुनने के बाद फिर आपको लगेगा कि अगर अभी आप डिप्रेसिंग मोड में जाएंगे, आप रिपेंटेंस फील करेंगे, तो आप उस सोल को कुछ बहुत हेल्दी नहीं दे रहे हैं, अपनी सिस्टर का रियल कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। सबसे बड़ी बात परमात्मा हमें बताते हैं कि शरीर और आत्मा ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एनर्जी। मैं आत्मा एक ड्राइवर की तरह कार इस शरीर में एंटर करती हूँ और इस गाड़ी को चलाती हूँ। और जब ये गाड़ी बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, ड्राइवर हेल्दी नहीं है या गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो जब मेरा शरीर हेल्दी नहीं है, जैसे गाड़ी में सपोज करो किसी कमरे में अगर आग लग जाएगी तो आप उस कमरे में बैठे नहीं रहेंगे ना, आपको निकल जाना है ना उस कमरे से। इसी तरह फिजिकली जब हमें कोई पेन होती है, फिजिकली हम अनफिट होते हैं या अदरवाइज कोई मेंटल ट्रॉमा से भी हम गुजर रहे हैं, तो आत्मा को जैसे उस मोमेंट लगता है कि मैं इस शरीर को छोड़ दूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम सुसाइड जैसा एक एक्ट कमिट करते हैं, आत्मा पेन में अगर शरीर छोड़ती है
तो वो पेन तो उसके साथ ही रहेगी ना, क्योंकि आत्मा ने शरीर छोड़ा, आत्मा तो एनर्जी है, उस एनर्जी से तो कुछ डिलीट नहीं हुआ ना। आपने कार से निकल कर कार को छोड़ दिया, पर आप एज एन इंडिविजुअल तो अलग एंटिटी हो ना। तो आप सोच के देखो, जिसने सुसाइड किया उस समय वो कितने पेन में होगा, कि उसको अपने शरीर को खत्म करने की पेन भी शायद बहुत बड़ी महसूस नहीं हो रही थी अपनी मेंटल पेन के आगे। तभी तो उसने एक स्टेप उठाया, नहीं तो इतने बड़े परमात्मा के दिए हुए गिफ्ट को इतनी जल्दी खत्म करना, इट्स नॉट अ जोक। तो अपने आत्मा को शरीर से निकाल लेना, जिसको हम सुसाइड कहते हैं, डेथ जिसको बोला, अब वो आत्मा ने पेन में शरीर छोड़ा। अब अगर हम सारे लोग मिलकर, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, स्पेशली जो आप सिबलिंग हैं और आपके घर में मम्मी पापा हैं, तो अगर हम उस आत्मा के लिए सिर्फ अभी नेगेटिव, क्योंकि वो ऑलरेडी पेन में शरीर छोड़कर गई है आत्मा, और अगर हम अभी सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, वो पेन में था, हम उसकी मदद नहीं कर पाए, तो वो बहुत हेल्पलेसनेस वाली एनर्जी आप उस बच्चे की तरफ भेज रहे हैं, जो उस आत्मा के लिए बहुत हेल्दी नहीं है। अब उस आत्मा को सिर्फ आपकी तरफ से कंफर्टेबल, हैप्पीनेस वाली, पीस वाली, लविंग वाइब्रेशन चाहिए। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो भी ऑडियंस इसको सुन रही है, कि हम अभी भी कुछ मोमेंट्स इनके शिवांगी के ब्रदर के लिए सिर्फ एक थॉट क्रिएट करें कि वो सोल अभी जहाँ पर भी है, अपनी जिस भी नेक्स्ट जर्नी में गई है, वो आत्मा बहुत खुशी से अपनी नेक्स्ट जर्नी को फेस करे। पास्ट का कोई भी नेगेटिव ट्रॉमा उनको टच ना करे। हम सब उनके लिए बस ये गुड विश करें कि आप जहाँ भी हो खुश रहो, यू बी एट पीस विद योरसेल्फ, यू बी एट हैप्पीनेस विद योरसेल्फ। हमारी तरफ से अब आपके लिए कोई अंदर नेगेटिविटी नहीं, आपने ऐसा क्यों किया, प्लीज कोई क्वेश्चंस क्रिएट ना करें, क्योंकि जब आत्मा शरीर में है तो वो बहुत ज्यादा शायद वाइब्रेशन लेवल को कैच नहीं कर पाती, क्योंकि हम ग्रॉस वर्ल्ड में जी रहे हैं ना, बॉडी इज लाइक फिजिकल ग्रॉस। पर जब मैं शरीर में नहीं हूँ, आई एम वेरी वेरी सटल, और मैं आसपास की सारी सटल एनर्जीज को बहुत इजीली कैच कर लेती हूँ। तो आत्मा बिना बॉडी के बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है फॉर द वाइब्रेशंस। अभी आपका एक एक थॉट उस सोल को जा रहा है। प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी नेगेटिव थॉट क्रिएट ना करें। आई नो यू हैव लॉस्ट योर ब्रदर, बट दैट सोल इज स्टिल देयर। आपने सिर्फ एक फिजिकल बॉडी को खोया है, आत्मा तो अभी भी है और हमारे आसपास ही है, हमें सुन सकती है, हमें देख सकती है। तो हमें सिर्फ ये थॉट करना है कि वो अपनी अगली जर्नी में जाएं, उनका अगला लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो, उनको बहुत हेल्दी कॉस्ट्यूम मिले, बहुत हेल्दी फैमिली मिले, और कोई भी जो पास्ट में उनका जो जिस ट्रॉमा के कारण उन्होंने ये स्टेप लिया लाइफ में, वो नेगेटिविटी उनके लाइफ में कभी ना आए। प्लीज उनको ये दुआ दें, उनके लिए ये गुड विश करें। एक भी नेगेटिव थॉट, पेन का थॉट अगर हमने क्रिएट किया, तो वो आत्मा उस पेन को रिसीव करेगी। तो क्या आप चाहते हैं आपका ब्रदर पेन में रहे? नहीं, प्लीज उनको अपने पेन से मुक्त करना है। तो प्लीज सिर्फ उनके साथ अच्छे मोमेंट्स जो स्पेंड किए, अच्छी अच्छी फीलिंग्स रोज देखें बार बार कि परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट उस आत्मा को बहुत लाइट भेज रहे हैं, उनके ऊपर चारों तरफ लाइट, उनका फेस पहले सामने लाएं अपने मन में। मेरे ब्रदर का फेस मेरे सामने है, माथे पर पॉइंट ऑफ लाइट चमक रहा है और बहुत सारी गॉड की प्योर लाइट उनको मिल रही है, और वो आत्मा बहुत हैप्पी है जहाँ पर भी है, बहुत खुश है। अब आगे से वो लाइफ में कभी ये स्टेप नहीं उठाएगी। वेरी हैप्पी, वेरी पीसफुल। बार बार उनको पीस और हैप्पीनेस की, प्यार की एनर्जी भेजिए। ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू मी, नो नेगेटिव वाइब्रेशंस प्लीज। इट्स ओके शिवांगी। दीदी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल इतनी नेगेटिव एनर्जी होने के बाद हम पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं? यही तो सिस्टर क्वेश्चन है ना, कि नेगेटिव एनर्जी होने, पॉजिटिव होने पर पॉजिटिव सोचा तो कौन सा बड़ा तीर मारा। नेगेटिव एनर्जी होने पर ही तो हमें डिमांड हमसे मिल रही है ना। नेगेटिविटी एक्चुअली हमसे डिमांड कर रही है कि प्लीज मुझे भेजो, आई वांट टू बी पॉजिटिव। नेगेटिव, वही तो हमने आपसे सारी बात की। नेगेटिव एक्चुअली में नेगेटिव कहाँ है, सिचुएशन बाहर, नेगेटिव भी कहाँ, यहाँ, क्योंकि हम उस सिचुएशन के बारे में नेगेटिव थॉट्स चला रहे हैं, और वो फिर हम सारा दिन मीडिया पे पोस्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग की शेयरिंग बढ़ना ही तो नेगेटिविटी है। अब हम आपसे रोज, अभी हम जो सारी हमने क्राइसिस की बात की, काम कैसे रहना है, हम यही तो बात कर रहे हैं कि रोज अपने साथ टाइम स्पेंड करें, रोज अपने आप को याद दिलाएं, मैं कौन, मेरा कौन, उसे उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर भरें। रोज अच्छा अच्छा मटेरियल पढ़ें, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है हमारे पास, उसको पढ़ें और फिर वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें, तो हम उस नेगेटिविटी को फाइट कर सकते हैं। और ये अभी हमारा फर्ज है। नेगेटिव सिचुएशन में ही तो पॉजिटिव होना है। जैसे कई लोग कहते हैं दीदी कलयुग चल रहा है, भलाई का जमाना थोड़े ही है। अरे जब सतयुग था तब तो सभी भले लोग थे ना, उस समय थोड़ा ना भलाई करनी थी। भलों की भलाई नहीं होती, बुरों की भलाई होती है। तो जब सारे नेगेटिव सोच रहे हैं, उसी समय तो समय है मुझे पॉजिटिव सोचना है, और हम सबको पॉजिटिव सोचना आता है। हम सब चेक करें, सारा दिन में हम सारा टाइम थोड़ा ना नेगेटिव सोचते हैं।
अभी भी चेक करो पूरे दिन में कितनी बार हम अच्छी बातें भी तो सोचते हैं, तो पॉजिटिव का ट्रेजर भी तो हमारे अंदर है ना, नेगेटिव से ज्यादा है। बट आज गाना नेगेटिव का ज्यादा गाया जा रहा है क्योंकि शेयरिंग वैसी है, वातावरण में नेगेटिव परफ्यूम ज्यादा है, पॉजिटिव परफ्यूम कम फैला हुआ है। तो इसलिए बार बार अपने साथ बैठिए, अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को पहचानिए, अपने इनर वर्ल्ड को विजिट कीजिए, रोज परमात्मा से बात करके उसकी शक्तियां लेकर लोगों से भी फिर उसी तरह की एनर्जी की कन्वर्सेशन करें। नेगेटिव में ही पॉजिटिव होना है और पॉजिटिव हम हैं, होना नहीं है, वी ऑलरेडी आर। ओके मैम हेलो हाँ जी हाँ जी शिवांग। मैम, जैसे उसकी कुछ विशेष थी कि मेरे को शॉप करनी है अपनी, एक मेरे को ब्लॉगिंग करनी है, तो अब उसकी विशेष मैं पूरी करूँ तो क्या वो सही होगा या फिर वो खुद करे नेक्स्ट लाइफ में? मैं किस तरह की विश थी? I couldn't catch it. जैसे उसको बिजनेस करना था जी कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बनूं, और जी जैसे इंटरनेट पे ब्लॉगिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब कुछ उसका मतलब उसके दिमाग में ये सब चीजें थी। जी मेरे से डिस्कस करता था, हमने प्लान किया था हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो अब मैं क्या करूं? आप से देखिए आपके जो इंटरेस्ट है, आप तो उन हॉबीज को या अपने इंटरेस्ट को, अपने करियर को परस्यू करेंगे ना। तो सोल अगर वो संस्कार साथ में लेकर गई है, सोल को अगर उस चीज का बहुत इंटरेस्ट था, अब नेक्स्ट कॉस्ट्यूम मिलते ही वो ऑटोमेटिकली उस तरफ उसका, अगर उसका फ्लो उस तरफ है तो वो फिर से उस चीज को कैरी कर सकती है, वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में वैसा बन जाएगा। बस आप वो सीन जरूर देखो कि उसको नेक्स्ट बहुत हेल्दी कॉस्ट्यूम मिला, वो बहुत हेल्दी बेबी एक हेल्दी घर में है, उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा उसका जीवन, और वो सब कुछ वो ड्रीम्स पूरे कर पा रहे हैं जो उसने इस लाइफ में प्लान किए थे। पर एक बार भी रोना नहीं है, नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजनी है, क्योंकि वो आत्मा उसको रिसीव कर रही है। प्लीज अभी सोचो ही ना कि वो मर गया, वो मरा नहीं है, वो आत्मा अभी भी है, आत्मा अमर है, आत्मा इटर्नल है, आई कैन नेवर डाई। आप सब भाई बहनें जो हमें सुन रहे हैं, प्लीज इस चीज को पक्का करो, ये फियर खत्म कर दो कि कोविड-19 हमें कुछ कर देगा। नहीं, हम कोविड-19 से बहुत पावरफुल है, आत्मा इटर्नल है, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। होगा तो ज्यादा से ज्यादा व्हीकल को होगा, बॉडी इज माय व्हीकल, आई एम द बीइंग, आई एम द इटर्नल लिविंग पावर, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई भी आत्मा अगर सुसाइड भी कर दे तो उसका बहुत नेगेटिव ना क्रिएट करें, इट्स ओके। आत्मा ने कॉस्ट्यूम छोड़ा, दूसरा मिला, उसको दूसरे कॉस्ट्यूम में हैप्पीली सरवाइव करने के लिए अब शांति वाले वाइब्रेशन भेजें, अब नेगेटिव ना सोचें। ओके थैंक यू। ओके, ये एक शिल्पी मैम का क्वेश्चन है। शिल्पी मैम, यू मे आस्क द क्वेश्चन। Thank you, Vivek. First of all, Didi, thank you very much for such a wonderful session. थैंक यू। My question is something I know बहुत practical है। मैं शायद being a student of literature, a teacher of literature, मैं थोड़ा thought process में ज़्यादा involved रहती हूँ। जी आपके सेशंस जब भी टाइम मिलता है मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, एंड विवेक ही इज माय स्टूडेंट, पिछले 2 साल से मेरे साथ है, तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इस बच्चे के साथ। हैट्स ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू हिम। माय क्वेश्चन इज द कोर्स ऑफ लाइफ यू हैव एंड द कोर्स ऑफ लाइफ वी पीपल हैव, इट्स जी। ऑल टुगेदर डिफरेंट। जी जब हम आपसे बात करते हैं या आपके प्रेमिसेस में एंटर करते हैं तो ऑल टुगेदर हम एक डिफरेंट वर्ल्ड में एंटर करते हैं, बट द crux of the story is कि हमें अपनी लाइफ में रहना है, we have family, kids, our job and everything. जी At times, I don't know, मैं पॉजिटिव बहुत रहती हूँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मतलब अपने अंदर रिजुविनेट करती हूँ, अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, प्रायोरिटीज को प्रायोरिटाइज करती हूँ, बट कभी कभी ये फील आती है हाउ टू बेसिकली स्ट्राइक दैट बैलेंस। राइट मतलब जब आई मी माई सेल्फ वाली बात आती है, वो भी सब कुछ फुल है, आई एम अ कंटेंटेड सेटिस्फाइड काइंड ऑफ अ पर्सन, नो ग्रजेस फॉर एनीथिंग, बट कई बार लगता है कि वो बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए पता नहीं क्या करना चाहिए। आई डोंट नो, आई मीन अब आपसे इतना ज्यादा अब आपकी बात सुनी है, ये इफेक्ट शायद कुछ दिन के बाद धीरे धीरे जो है वो खत्म होएगा। ऑब्वियसली हम अपनी लाइफ्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, द काइंड ऑफ रूटीन वी हैव दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। सो मैम बेसिकली वो बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए कोई एक ऐसा कुछ हो जो हम मतलब जिसको अपना बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए समथिंग, मतलब व्हाट इज योर सजेशन फॉर दैट? जी आई गॉट द क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। थैंक सबसे पहले तो शिल्पी जी ये आपसे बताएंगे कि जैसे भी आपने कहा, नो डाउट हम सबका लाइफ सबका ही अलग है, इवन हम जो सेंटर पे भी सभी रह रहे हैं, सबका लाइफ माना हम सबके संस्कार अलग अलग है, राइट? द वे वी डील विद द थिंग्स एंड सिचुएशंस वो सबका अलग है, चाहे वो घर एक ही घर में 10 लोग भी क्यों ना हो, राइट? थिंकिंग तो सबकी अलग है ना। पर हम ये हमेशा याद रखें कि जैसे भी मैंने परिस्थिति और स्वस्थिति वाला पॉइंट लिया था कि मतलब हम कहीं पर भी हैं,
अगर मैं जैसे भी अपने का मैं आत्मा हूँ और मैं रोज उस कॉन्शियसनेस में रहती हूँ कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो वो सेंटर हो या घर हो फिर वो मैटर नहीं करता है। आप क्योंकि आप तो एज ए बीइंग जा रहे हैं ना वहां पर, वातावरण को हम प्रभावित करें, वातावरण हमें प्रभावित ना करे, ये मंत्र याद रखिए। आई इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट एंड द सिचुएशंस, नॉट द वाइस वर्सा, राइट। और हमेशा याद रखिए ब्रह्मा कुमारीज में भी 10 लाख भाई बहनें जो रेगुलर ब्रह्मा कुमारीज के स्टूडेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ 35,000 सिस्टर्स डेडिकेटेड लाइफ में है जो सेंटर्स पर रहकर सर्विसेज दे रही हैं। मोर देन मतलब लेस देन 1% समर्पित है डेडिकेटेड लाइफ में, बाकी सभी गृहस्थी है। तो हमारे पास सभी गृहस्थी आते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं, जो डिस्कोर्स जिसको मुरली कहते हैं उसको स्टडी करते हैं, और फिर उस नॉलेज को लेकर उस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो बैलेंस को स्ट्राइक करने का मंत्र यही है कि आप एक तो पहले 7 डेज का कोर्स कीजिए। ये सिर्फ मैं ब्रह्मा कुमारी इसका एक स्टूडेंट बढ़ाने के लिए आपको राय नहीं दे रही हूँ, बट बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ ऑफ ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन, इस यूनिवर्सिटी में मैं आज सीधा आप सभी ऑडियंस जो भी मुझे सुन रहे हैं उनको बताने में मुझे बहुत गर्व और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि स्वयं परमात्मा पिता, जिनको आज तक हम सब ढूंढ रहे थे, ज्ञान का सागर जिसको कहते थे, वो खुद ज्ञान देने धरती पर आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर वो ज्ञान का सागर बहुत फेमस है दुनिया में, सारे उसकी प्रेज में गाते हैं, तो उसने ज्ञान कोई ऊपर बैठकर तो नहीं सुनाया होगा ना, वो उसको आना पड़ेगा ना। सी मम्मी पापा बच्चे लड़ रहे हो गार्डन में, तो मम्मी पापा घर की बालकनी पे खड़े होकर बोलेंगे नहीं हाँ मेरी तरफ से भी मार दे एक, नहीं, वो आएंगे गार्डन में, दोनों बच्चों के बीच में इंटरफेयर करेंगे, दोनों को छुड़ाएंगे। इसी तरह परमात्मा कहते हैं बच्चे, जब मैंने आपके लिए जो वर्ल्ड बनाया था दैट वाज गोल्डन एज, ब्यूटीफुल सतयुग, और आज फाइनली विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे वो नीचे आते आते आज कलयुग में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब वो गोल्डन एज का क्रिएटर, हेवंस क्रिएटर, हम उस हेवनली गॉडफादर के बच्चे अब हेल में बैठे हैं, तो वो ऊपर बैठे एंजॉय तो नहीं करेगा, तो वो ऊपर वाला फाइनली नीचे आ चुके हैं। गुड न्यूज टू ऑल ऑफ यू, गॉड हैज कम, और वो हमारी धरती पर आकर एक यूनिवर्सिटी के मीडियम से हमें एजुकेट कर रहा है। आज कोई बहुत अच्छा गाता है पर किसी ने कभी उसका गाना सुना नहीं, तो यू कांट कॉम्प्लीमेंट देम कि आप तो बहुत अच्छा गाते हो, गाना सुनकर ही कॉम्प्लीमेंट पास करेंगे ना। ज्ञान के सागर को हमने शास्त्रों में उसकी महिमा भर दी, तुम ज्ञान के सागर प्यार के सागर, तो फाइनली वो ज्ञान और प्यार शॉवर कर रहे हैं अपने बच्चों पे। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, भले अभी सेंटर्स नहीं खुले हैं, learnonlinemeditation.org इस साइट पर विजिट करें, या विवेक को मैं बता दूंगी जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। प्लीज आप एक बार सभी जो हमें सुन रहे हैं 7 डेज का इंडक्शन कोर्स ब्रह्मा कुमारी इसका जरूर कीजिए। उस कोर्स को करते करते आपको लगेगा कि मुझे मेरी लाइफ की हर परिस्थिति की हर प्रॉब्लम का आंसर मिल गया, क्योंकि परमात्मा ने हमें कैसे जीना है सुबह से लेकर शाम तक, हर कर्म कैसे करना है, चाहे फिर आप सेंटर पर हो या घर पर हो, एक एक बात का फॉर्मूला बताया है। उन गॉडली फॉर्मूलाज को लेकर आप जीवन जिए, फिर चाहे आप सेंटर पर हैं या घर पे हैं, यू आर इन अ बैलेंस्ड अप्रोच। प्लीज इसको आप परस्यू कीजिए। थैंक यू। Thank you very much. Thank you. Ma'am, I have one. ये लास्ट क्वेश्चन होगा बिकॉज थोड़ा टाइम का भी देखना पड़ेगा, सो आजाद यू मे आस्क द लास्ट क्वेश्चन। Ma'am, what is the correlation between Mansa, Vacha and Karmana? Share some thoughts from students' perspective. What is? Can you repeat the question again? What is the correlation? Ma'am, what is the correlation between Mansa, Vacha and Karmana? Ji. Share some thoughts, please. Okay. Have you Azad bhai, have you taken the course of Brahma Kumaris? Yes, ma'am, a long ago. Okay. तो जैसे इन्होंने भी क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में परमात्मा हमें ये बताते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज में कि अपने मन, वाणी और कर्म को हम सिंक्रोनाइज करें। जैसे हम ओम शांति भी जब बोलते हैं ना, ओम शांति, तो ओम शब्द AUM इन 3 वर्ड्स को यूज करके बना, बोलने में तो OM आता है ओम, पर ये ओम शब्द AUM, तो AUM का मीनिंग है A फॉर एक्शंस, U फॉर अटरेंस एंड M फॉर माइंड। माना मेरे कर्म, मेरा वाचा मीन्स माई वाणी, माई स्पीच, एंड देन माइंड मीन्स माई थॉट्स। तो शांति लाइफ में कब आएगी? जब मेरे थॉट्स की जो मैं सोच रही हूँ वही मैं वर्णन करती हूँ, मेरे मुख से वैसे ही शब्द निकलते हैं। अगर सोच रही हूँ आई एम अ पीसफुल सोल और मार रही हूँ दूसरे को टॉन्ट, रूड भाषा में बात कर रही हूँ, तो वो तो सिंक्रोनी नहीं हुई ना। तो अगर ये सिंक्रोनी नहीं है तो शांति कैसे आएगी? तो ओम शांति, आई एम एट पीस, आई एम अ पीसफुल सोल। तो पीसफुल एक्सपीरियंस लेने के लिए भी और पीसफुल एक्सपीरियंस देने के लिए भी हमें इन तीनों का बैलेंस चाहिए, थॉट्स को, वर्ड्स को, और फिर हमारे कर्म में जब हम उन थॉट्स को पुट इन करें, उन तीनों की हार्मोनाइजेशन को देखें कि तीनों एक लेवल पर हो। ये लोग बोलते हैं हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं।
एक बार परमात्मा ने बहुत डिफरेंट सी लाइन हमें बताई कि जो तीनों में हार्मनी नहीं रखते वो दुनिया में बहुत खौफनाक लोग हैं। हमें तो कभी इस खौफनाक लिस्ट में नहीं आना है। हम जो सोचें वही वर्णन करें, वही हमारी स्पीच में हो और वही हमारे कर्मों में मैनिफेस्ट हो। तो मन, वचन, कर्म, जिसको भाई जी ने अभी बोला, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों में सेम रखेंगे। जैसे अभी शिल्पी जी ने भी बोला बैलेंस रखना है। हम सोचते बहुत अच्छा है पर वाणी तक आते आते उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। पर अगर हम रोज परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा तो इतनी बड़ी शक्ति है, शक्तिशाली आत्मा के लिए इन तीनों को हार्मोनाइज करना बहुत ईजी है। सोच हमारे शब्दों में आएगी, फिर वही हमारे कर्मों में आएगी और वही बिहेवियर फिर हम दूसरों के साथ करेंगे और रोल मॉडल बन जाएंगे। इट्स ओके आजाद भाई? Yes, ma'am. Thank you. ओके। Thank you so much, Didi. And definitely we'll be choosing calm over crisis from now onwards. And जो छोटी-छोटी practices हैं like 30 minutes before, before sleep and 30 minutes after Please sleep. remember, don't do it the opposite. So we'll be following it. Now I'd like to request Ghanshyam sir, who is in charge of the Path Seeker Society, that he propose the formal vote of thanks. Thank you very much, Vivek. And Sister Preeti, it was a wonderful session. बहुत सारी चीज़ें हम इतनी उम्र के हो गए आज सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। और मुझे तो, मैं जितने बच्चे सारे सुन रहे हैं उनको एक ही कहूँगा कि जो सिस्टर ने अभी बोला है ना, आप ये 10 लोगों को सुना दो, ये आपका हो जाएगा। नेगेटिविटी खत्म, पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी। फिर जब भी जैसे सिस्टर ने कहा कि जो चीज़ हम देते हैं, बांटते हैं, तो हमारे अंदर ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। आप कभी कोई नोट्स बनाते हो, मैं किसी को पढ़ा, उसी मोमेंट आती, मेरे अंदर तो अभी आ गई। तो मैंने इसको साथ में ये देखिए लिख लिया है। तो इफ यू आस्क मी टू रिपीट द थिंग्स, आई विल रिपीट इट राइट नाउ। बट यहाँ नहीं, यहाँ आप लोगों ने सुन लिया है, आई विल रिपीट इट टू सम अदर पीपल। आई हैव बड़ी बात तो मुझे ये लगी, आहार एक हम बॉडी के लिए खाते हैं और एक आत्मा के लिए। और आत्मा के लिए जो आहार लेते हैं उसको तो हम फिल्टर करते नहीं, पानी फिल्टर का पीते हैं और कितनी बार हाथ सैनिटाइज करते हैं। और जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उसके बारे में तो कभी हमने सोचा ही नहीं क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। वो तो क्यों, जो इनपुट आएगा वही तो आउटपुट आएगा। अगर जूसर मशीन में हमने मौसमी डाली तो मौसमी का जूस ही आएगा, और शुगर केन डालेंगे तो शुगर केन का आएगा। तो जो हम सुन रहे हैं वही आएगा। और सुबह उठते ही, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि सुबह उठते ही हम जैसे गैजेट को देखते, कितने मैसेज आए कौन नो। आप उठिए, पहले आराम से बैठिए, जो हमें बताते रहे हैं हमारे बड़े बुजुर्ग के, पहले चुपचाप से देखिए, रात को स्वप्न में कुछ देखा, देन अपने गुरु को याद कीजिए, उस इष्ट को याद कीजिए और उसको थैंक कीजिए। जो अभी सिस्टर ने बोला, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि कितने लोग सोए ही रह गए, उठे नहीं है। हम उठ तो पड़े ना, हमें दोबारा ये दिन देखने के लिए कि जो हमारी नींद है वो तो एक, जैसे शिवानी अभी सुन रही होगी, तो शिवानी बेटा, जो नींद भी हमारी मृत्यु होती है, ये अलग मृत्यु होती है। हम सुबह उठ गए तो चल पड़े, और जो मौत है वो दीर्घ हमारी नींद है। तो सुबह उठते हम पहले थैंक करें गॉड का, ग्रेटिट्यूड के हमें दोबारा सांस लेने का मौका दिया है, और फिल्टर करके हम सारी इंफॉर्मेशन लें। और ये जो आपको, सॉरी ब्रदर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक हफ्ते के लिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, हम भी करते हैं इसको, कि सुबह उठते पहला थॉट, मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान मेरा पिता लगता है। मुझे लगता है इससे बड़ा पावरफुल थॉट दुनिया में और कोई नहीं है। जिसने सुबह उठते ही भगवान को अपने डैड के रूप में देख लिया, अब इमेजिन करो कोई बड़े फैमिली में बड़े व्यक्ति का बच्चा होता है तो सारा दिन उसके प्रोफाइल में कैसी फीलिंग रहती है, उसको कितना इंटॉक्सिकेशन रहता है कि मेरे पापा IAS ऑफिसर, मेरे पापा PM। तो हमारे पापा तो वो है जो सारी दुनिया के PMs को इकट्ठा कर दो, उनका भी, उनसे भी बड़ा पोजीशन वाला। तो मैं भगवान का बच्चा हूँ, इस वाली फीलिंग, ये हमारा पहला थॉट हो, कम से कम एक हफ्ता इसको ट्राई करके देखिए। बहुत अच्छी बात है। तो सुबह उठते बेटा, आपने वही जो जैसे सिस्टर ने कहा कि कुछ नहीं थॉट डालनी, कोई गैजेट नहीं देखनी है, पहले उठ के भगवान का नाम लो, भगवान का नाम के फिर आप आराम से तसल्ली से देखो रात को क्या दिखा आपने सपने में, उसके ऊपर विचार करो कि आपको ही ये सपना क्यों आया। पॉजिटिविटी रहेगी तो सपने भी पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिविटी तो आई सटर के वो हॉरर मूवी तो रात को सपने में चलाती है, फिर आप पकड़ लो। तो क्योंकि आहार ऐसा गया है तो बाहर भी आउटपुट भी वैसा ही आना है। तो दीदी सिस्टर, हम बहुत थैंकफुल हैं इस टाइम पे, ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। शिवांगी के ब्रदर ने हमारा सेशन लगाया होता तो अभी
देखियो स्पिरिचुअली तो हमारे साथ ही बैठा है, तो फिजिकली भी वो हमारे साथ बैठा होता है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ, दीदी तो बहुत बिजी होते हैं, मेरा नंबर सबके पास है, आई हैव गिवन माय नंबर टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो कभी भी किसी को बस स्ट्रेस कभी ना आए कैरियर के बारे में, कोई जब स्ट्रेस आती है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, मेरे पास घंटी फोन की बजती रहती है, तो मुझे इस बात की खुशी होगी। बहुत सारी, एक मैं छोटा सा किस्सा मैं शेयर करूंगा स्टूडेंट्स का ही। मैंने नया नया ज्वाइन किया, शिल्पी मैम अभी हैं, बैठे हैं तो हाँ जी सर, आई एम देयर, यस सर, आई एम लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। तो मैं Thank भी you, sir. यहाँ 2001 में सिस्टर मैंने यहाँ ज्वाइन किया, तो 2002-3 में मैं वार्डन बन गया। तो एक बच्चा मेरे पास आया, ही वाज फ्रॉम हिमाचल, चौहान। तो सर आपसे बात करनी है। मैं कहा बेटा कर लो। नहीं सर आपसे अकेले से बात करनी है। मैं कहा कर लो बेटा, नहीं आप आधा घंटा मुझे दे सकते हो। 2-3 दिन निकल गए, मैं भी अब couldn't take him seriously। मेरे अपने पीसीएस के एग्जाम चल रहे थे उन दिनों में, साथ में जॉब भी कर रहा था। तो उसने एक दिन बोला, कहता सर जब मैं मर जाऊंगा फिर टाइम दोगे? तो वो एक बड़ा शॉकिंग लगा। तो आई जस्ट कॉल्ड हिम। तो हम अपने हॉस्टल के, अब तो वो गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल का ऑफिस है, तब चारों बॉयज हॉस्टल होते थे। तो मैं वार्डन था, तो मैंने वहाँ बिठा लिया। तो कहते सर मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट है। मैंने कहा बेटा क्या रिग्रेट है? कहता जी मैंने अपने पेरेंट्स का बहुत पैसा खर्च कर दिया। मैं 6वीं क्लास से हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ, 6th to 7th, अभी मैंने बीए भी कर ली, और मेरे पे इतना पैसा खर्च दिया, आई एम डूइंग नथिंग फॉर देम। तो मेरे को लगता है कि मेरी जिंदगी जो है बिल्कुल बेकार है, अभी उन पे बोझ बनूंगा और खर्चा करूंगा, क्यों ना मैं मरी जाऊं। हाँ बेटा ये तो कोई बात नहीं, मैंने आपके पेरेंट्स तो उससे खुश नहीं होंगे। कहता कम से कम मैं बोझ तो नहीं रहूंगा। तो मैं कहा आपका कितना खर्चा? उस जमाने में सिस्टर हमारा ये 5-1 हजार बहुत खुला खर्चा होता था, 5-1 हजार में, 3 हजार में भी चल जाता था, हॉस्टल की फीस भी कम होती थी तब। तो मैंने कहा जी आपका खर्चा कितना? कहता सर 5 हजार। मैं क्या, अगर आप 5 हजार खर्चा करके 5 हजार पेरेंट्स को भेज सको तो क्या ये बढ़िया बात नहीं होगी? कहता ऐसा हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम शिल्पी मैम, हमारे कॉलेज में एक कंपनी आई थी एशियन पेंट्स, ये अरुण अग्रवाल सर थे आपके इंग्लिश वाले, इनके कोई रिलेटिव थे, तो उन्होंने पहली बार प्लेसमेंट ड्राइव करी। तो मैं आई रिक्वेस्टेड दैट फेलो, मैंने कहा भाई आपको ना 2 महीने का चेक मैं लिख के दे देता हूँ, जब तक इसके पेरेंट्स आ जाएंगे तो आप इसको जॉब जरूर दे देना 10,000 की, चाहे आप फेक लेटर दे दो, इसकी जान बच जाएगी। तो वो पूरा सेशन इंटरव्यू भी हो गया और जो ग्रुप डिस्कशन भी होगी। तो ही गॉट अपॉइंटमेंट लेटर वर्थ 13,000 रुपीज, उस लड़के को, चौहान को मिल गया, 13,000 रुपए। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। कहता इसमें तो मैं 5,000 का खर्चा करके 8,000 भेज सकता हूँ पेरेंट्स को, तो मैं 3-4 साल में निबेड़ दूंगा पैसे। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। मीन टाइम आई कंटेक्टेड हिज पेरेंट्स, वो आए, दोनों टीचर्स थे, उनका बहुत बड़ा सेब का बगीचा था। कहते हमारा तो एक ही लड़का है, हमारे पास तो इतना पैसा कि ऐसे 10 पढ़ा सकते हैं। तो एक मोमेंट पे आपने किसी को सुन लिया या किसी को सुना दिया तो सारी चीजें बदल जाती हैं। तो ये जितने बच्चे सुन रहे हैं, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव, आपके पेरेंट्स आपसे कोई बात करना चाहते हैं तो गिव पता नहीं उस मोमेंट में उन्होंने कौन सी बात आपके साथ शेयर करनी होती है। तो समटाइम कहते हैं योर फ्रेंड्स शुड बी लाइक ए डस्टबिन वेयर यू कैन स्पिट ऑल योर पेन्स। तो यही है। तो आज हर होलीनेस सिस्टर प्रीति आए तो बहुत अच्छा माहौल बना। फ्रॉम द इनरमोस्ट कोर ऑफ आवर हार्ट वी आर सो थैंकफुल टू यू, और हम इन फ्यूचर भी आपकी गाइडेंस लेते रहेंगे। आई एम वेरी लकी, आई एम लिविंग इन सेक्टर 15 ओनली। तो हमारी वो कविता आती है, वो शी इज माई रिलेटिव, आपके पास वो आती है, बहुत बार बात होती है आपकी। तो पहले हम 10 सेक्टर में 27 नंबर हाउस में रहे, तो उस हाउस में हमसे पहले आप लोगों का ही वहाँ पे आश्रम था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और शिल्पी मैम आपका भी बहुत थैंक्स। और विवेक, ये तो वाकया में मेरा विवेकानंद है मैम, इज अ वंडरफुल गाय। जैसे शिल्पी मैम ने कहा, इस पे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you God, and thank you all of you. Thank you so much. A big thank you to all the participants and Sister Preeti. Thank you so much again. जिसने अभी तक अपने जो feedback form है वो fill नहीं किया है, I'll request them to kindly fill the feedback form. As soon as you'll fill the feedback form, आपके email में you'll be receiving the e-certificates. And if you face any problems, then you can directly contact me in the WhatsApp group. I'll just share it again chat box में. So जिसने नहीं करा है, I'll personally request कि वो please अभी fill कर दे, because we'll be accepting the responses by 1 PM only. उसके बाद we'll not accept the response.
Again, I like to thank Sister Preeti and all the participants for joining us, and especially from other countries also. Thank you so much. Thank you, Shanti. Thank you. Thank you.